myself Bhadresh. I'll be taking this complete subject of this secretarial audit, compliance management and due diligence. Okay. Now talking about this subject, this is very much related to your, not very much, but I can say 20 to 30% related to your knowledge of executive. क्योंकि in that case तुम लोग ने काफ़ी बार कंपनीज एक्ट के बारे में पढ़ा होगा, not all the sections but many sections or few sections, whatever you say, जितने भी तुम्हें याद हो वो, they all are very much connected to our professional as well, not only for this subject but for other subject as well. But in this subject we are going to see some few concepts of company law as well. The reason why I am talking about company law first is because if you see the first word, that is secretarial audit. Now whenever this word comes secretarial audit, सबसे पहला एक्ट जो ऑडिट में यूज किया जाता है वो है कंपनीज एक्ट. कभी भी तुम लोग secretarial audit करोगे in future, if I say there are 100 matters, out of 100 suppose 70 matters will be related to your companies act. That is why तुम्हारा जो कंपनी लॉ का नॉलेज है वो यहाँ पे बहुत यूजफुल होगा. Whether it is there in the syllabus or not, that is not the question, but यहाँ पे ये तुम्हारा नॉलेज तुमको यूजफुल होगा. Secondly, the word second part we have is compliance management. Now compliance is what does compliance means? Compliance means nothing but doing the necessary filings. For example, अगर कोई particular transaction हुआ है and Companies Act के हिसाब से बोला गया है कि ये फॉर्म फाइल करना है, this is the procedure which is to be followed. So the adhering to this procedures is nothing but the compliance management. And last is due diligence, right? Now what is the due diligence word means? अभी एक due diligence का simple meaning मैं बोलूं तो due diligence का मतलब होता है background check या फिर बोलो checking in detail. Like for example, अगर मैं एक कंपनी को acquire करना चाहता हूं, just looking at the name of the company, क्या मैं उस कंपनी को acquire कर सकता हूं? No. कर भी लूंगा तो वो मेरा गलती होगा because I don't know the in and outs of the company. All right. The main thing what we need to understand is कि कंपनी का नाम तो ठीक है, बट कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कंपनी का कंप्लायंसेस कैसा है, क्या कंपनी ने टाइम टू टाइम सब फाइलिंग किया है कि नहीं किया है, क्या कंपनी कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया है. All these things we can find out if we do proper due diligence. And when we do this due diligence, definitely we are going to conduct an audit. And that audit is nothing but your secretarial audit. बराबर? That audit is nothing but your secretarial audit. All right. Now, if you see, मैंने दो part already बना के रखे. That means this subject is having two parts. Part A बोलो, 1 बोलो, जो बोलना है बोलो. Part 1 and part 2 I will say. Part 1 तुम लोग का है for 40 marks and part 2 you have for 60 marks. Right. Now part 1 के अंदर जो हम लोग पढ़ने वाले वो है तुम लोग का compliance management. Okay. All about compliances. And जो part B है तुम लोग का, which is of 60 marks, that is about secretarial audit and due diligence. ठीक है? That is about these two things, that is secretarial audit and due diligence. As I said, the words secretarial audit, compliance management and due diligence, तीनों तुम लोग को मैंने separately बताया. Right? Now this subject is comparatively easy. अगर मैं बोलूँ तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, especially part A. Part A is very much scoring. There are 7 chapters in part A. Those 7 chapters are very much scoring. दो chapter तो ऐसे होंगे कि it is like just we are doing some revision of the previous studies which we have done. ऐसा ही लगेगा कि हाँ, अरे ये तो हमने पढ़ा है. That is the way this subject is going to progress. All right. Now, let us start with the chapter today, which is chapter number 4. Now let us start with this search and status report. Okay. Now I don't know whether how many of you has experienced this practical life of this company secretaryship. कुछ लोगों ने शायद internship किया हो या कुछ लोगों ने जॉब वगैरह स्टार्ट किया हो related to this, तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है. Not about this search and status but about the MCA, that is Ministry of Corporate Affairs. क्योंकि अगर मैं सर्च एंड स्टेटस का बात कर रहा हूं ना, तो सर्च एंड स्टेटस दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. सर्च मतलब क्या, छानबीन करना. फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन. राइट, मैंने सर्च किया मतलब मैं कुछ चीज का इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, एंड उस इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग्स, मतलब उस इन्वेस्टिगेशन से मुझे क्या पता चला
कि वेदर कंपनी कंप्लायंस में है कि क्या कंपनी डिफॉल्ट में है, जो भी है, दैट इज गोइंग टू बी माय स्टेटस रिपोर्ट। क्या फॉलोइंग थिंग्स आर नॉट कंप्लाइड, तो उसको मैं नोट डाउन करूंगा। दिस इज द वे हाउ सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड। ओके, नाउ सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बनाने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, राइट, तो मैं शायद सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट इन डेप्थ ना बनाऊं, बट मैं एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन शायद कंडक्ट करूं। इन्वेस्टमेंट मतलब मैं कोई 10-15 हजार के शेयर्स की बात नहीं कर रहा। ओके, आई एम गोइंग टू मेक ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन दैट कंपनी, राइट। तो इट इज अ बेसिक थिंग कि मुझे उस कंपनी के बारे में पहले कंप्लीट डिटेल जानना जरूरी है। लाइक फॉर एग्जांपल एक्विजिशंस, व्हेन वन कंपनी अक्वायर्स अनदर कंपनी, डेफिनेटली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, बट तुम सोचो अगर कंपनी ए कंपनी बी को खरीद लेता है बट कंपनी बी के बारे में कोई रिसर्च ही नहीं करता, तो वो तो एक बोलते ना, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ फ्रूटफुल डील फॉर ए लिमिटेड। इसीलिए एक बेसिक सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट जानना जरूरी हो जाता है। नाउ सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट इज मच मोर इनटू द डेट्स और लोन्स टेकन बाय द कंपनी। ओके, कंपनी का क्रेडिट साइड का जो स्टेटमेंट है वो कितना हैवी है, कंपनी के ऊपर कितना लायबिलिटीज है, वो कितना है, वो सब चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि मान के चलो अगर कंपनी के ऊपर दुनिया भर का लायबिलिटीज है और मैंने पैसा लगाना है, तो हो सकता है कि कंपनी जो कमा रहा है वो तो शायद पहले लायबिलिटीज में ही क्लियर हो जाए, मुझे कब कमाने मिलेगा एज एन इन्वेस्टर, व्हेन आई विल अर्न। ओके, so all these things needs to be detailed, and for that detail a search and status report is conducted. A search is conducted, and based on that a status report is prepared. Okay, now let us start with the introduction first. क्या बोला गया इंट्रोडक्शन में, देखो, search and status report, right, helps the lenders. If you see the very first line word दिखा है lenders, lenders मतलब क्या, जो कंपनी को पैसा लेंड करने वाले। अगर वही तो मैं बोल रहा था, मैं इन्वेस्टर का एग्जांपल ले रहा था, लेट अस अज्यूम कि अभी ये लेंडर का बात हो रहा है कि भाई अगर मैं कंपनी को पैसा दे रहा हूं तो उसका एबिलिटी है क्या मुझे लौटाने का, बिकॉज इट इज लेंडिंग। तो सबसे पहला मैं एक चीज सोचूंगा कि भाई एट द मैच्योरिटी और एट द एक्सपायरी ऑफ द टर्म क्या मुझे मेरा पैसा जितना मैंने लेंड किया है वो मुझे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा विथ इंटरेस्ट। दैट इज द मेन कंसर्न विच आई विल थिंक ऑफ, और उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बनाया जाता है। तो सी, search and status report helps to assess the exact position of the company in terms of compliance and standing in terms of loan service history. Now दो वर्ड है यहाँ पे, एक वर्ड है तुम लोग का compliance, दूसरा वर्ड है तुम लोग का loan service history। ये दोनों अलग अलग वर्ड है। compliance as I said कि कंपनी ने सब टाइम टू टाइम फाइलिंग किया है कि नहीं किया है। Now talking about loan, right, talking about loan, तो डेफिनेटली एक सिक्योरिटी लगता है। तो कंपनी ने लास्ट मतलब जो भी प्रीवियस लोन्स लिए होंगे उसके रिलेटेड कंप्लायंसेस फॉलो किए थे कि नहीं किए थे। जरूरी नहीं है कि ये फर्स्ट लोन हो उसका, सी फर्स्ट लोन है तो फिर ये पॉइंट इग्नोर करना पड़ेगा। बट इफ सपोज कंपनी इज इन एग्जिस्टेंस फ्रॉम लास्ट 10-15 ईयर्स एंड आज मैं कंपनी को पैसा दे रहा हूं, तो मैं एक चीज डेफिनेटली चेक करूंगा कि क्या ये कंपनी ने कहीं पहले लोन लिया था। चलो अगर लिया था तो क्या टाइम पे रीपे किया था, डिफॉल्ट हुआ था, क्या है क्या नहीं, ये सारी चीजें मैं जानने के लिए सर्च कंडक्ट करूंगा। एंड दिस सर्च इज नॉट वेरी मच डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू कंडक्ट। खाली एमसीए के वेबसाइट पे जाने का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट पे तुम जब मास्टर डेटा, देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड एज कंपनी मास्टर डेटा, वो मास्टर डेटा में जाओगे ना, तो आफ्टर ऑल द डिटेल्स द लास्ट कॉलम व्हाट इट इज प्रोवाइडेड इज अबाउट चार्जेस। चार्जेस मतलब द लोन्स टेकन बाय द कंपनी, एंड सब अमाउंट होता है, वेदर लोन क्लोज हो चुका है कि नहीं हो चुका है, एक्टिव है कि नहीं है, लोन मॉडिफाई किया गया था कि नहीं किया गया था। ऑल दिस थिंग्स आर मेंशन इन द एमसीए वेबसाइट इटसेल्फ। एंड अगर तुम्हें लगता है कि अरे यार ये लोन में कुछ गड़बड़ है, तो सीधा उसका पब्लिक डॉक्यूमेंट्स तुम लोग व्यू कर सकते हो। देयर इज अ फैसिलिटी अवेलेबल कि यू कैन व्यू द डॉक्यूमेंट्स ऑफ दैट कंपनी। एमसीए के वेबसाइट पे जाने का नॉमिनल अमाउंट होता है पर कंपनी 100 रुपीज, 100 रुपया भरना होता है। एंड वो 100 रुपया भरने पे तुमको उस कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स, मतलब अब तक राइट फ्रॉम द बिगिनिंग से लेके ऑन टुडेज डेट कंपनी ने जो भी डॉक्यूमेंट्स या जो भी फॉर्म्स फाइल किए हैं, ऑल दैट कैन बी असेस्ड बाय यू, राइट। तो तुमको लगा कि हाँ ये सपोज 2012 का एक लोन है, उसको मुझे प्रॉपरली स्टडी करना है क्योंकि मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, तो तुम उस 2012 के
लोन के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हो, उसको चेक कर सकते हो क्या थे टर्म्स एंड कंडीशंस, क्यों मॉडिफिकेशन हुआ गया था, वगैरह वगैरह, राइट। तो ये था कंप्लायंस के रिलेटेड पार्ट। एंड नेक्स्ट इज द लोन सर्विस हिस्ट्री। इसको भी मैंने साथ में एक्सप्लेन कर दिया, लोन सर्विस हिस्ट्री कि वही कि प्रीवियस लोन्स था, वो लोन को इस पर्टिकुलर कंपनी ने किस तरह सेटल किया, टाइम पे रीपेमेंट किया था कि नहीं किया था, इंटरेस्ट प्रॉपरली पे किया था कि नहीं किया था, ऑल दिस थिंग्स आर टू बी चेक्ड। तो दैट इज व्हाई दीज आर द टू इंपॉर्टेंट टर्म्स। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते अभी। थ्रू दिस सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट, ओके, lenders get to know the details of charges created। आ गया पॉइंट, चार्जेस क्रिएटेड। नाउ अगेन तुम लोग ने कंपनी लॉ में चार्जेस तो पढ़ा ही है, राइट, एवरीबडी। अभी तुम लोग प्रोफेशनल में हो तो डेफिनेटली इन कंपनीज एक्ट तुमने चार्जेस पढ़ा है। चार्जेस इज नथिंग बट, आई ऑलवेज से इट इज अ प्रोसेस। इसको मैं वन वर्ड में डिफाइन नहीं करूंगा कि चार्जेस मींस ये। चार्ज एक प्रोसेस होता है कि जब कंपनी पैसा बोरो करती है, बदले में सिक्योरिटी देती है, तो चार्ज रजिस्टर किया जाता है, राइट। चार्ज रजिस्टर किया जाता है विद द आरओसी, उसके जो भी रिस्पेक्टिव ई फॉर्म्स है वो भरने होते हैं आरओसी में, ऑल दैट। तो सबसे पहले तो चार्जेस क्रिएटेड के बारे में पता चल जाएगा। ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी and the attendant compliances and registration status with the ROC, foreseeing where the company would stand if it goes into liquidation at that particular point also becomes easy। ये अभी liquidation का point क्यों आया? क्योंकि अगर मैं कंपनी के चार्जेस को असेस कर रहा हूं, दैट मीन्स मैं कंपनी की बोरोइंग्स को असेस कर रहा हूं। अगर मैं कंपनी की बोरोइंग्स को असेस कर रहा हूं, दैट मीन्स मैं ये सोचूंगा कि क्या कंपनी के पास इतना सफिशिएंट एसेट्स है कि वो अपना पैसा रीपे कर पाएगा। अगर मुझे लगता है कि हाँ भाई इसके पास एसेट्स अच्छा खासा है, ये फिलहाल लुकिंग एट द करंट स्टेटस लिक्विडेशन में जाने का कोई पॉसिबिलिटी लग नहीं रहा। एंड कॉमन सेंस है ना कि एक कंपनी अगर अच्छा प्रोग्रेस कर रही है एंड उसका लायबिलिटीज है तो क्या फर्क पड़ता है, इट इज नॉट गोइंग टू लिक्विडेट, क्योंकि कोई भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगा अगर वो कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रहा है तो। हाँ, प्रॉब्लम कब क्रिएट होगा कि जब एसेट्स कम है, लायबिलिटीज ज्यादा दिख रहा है, रिसीवेबल्स कम है, पेबल ज्यादा है, तभी प्रॉब्लम होगा। एंड दैट इज व्हाई जब सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट किया जाता है तो हम लोग ये भी एनालाइज कर सकते हैं कि क्या कंपनी नियर फ्यूचर में लिक्विडेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सी अगेन दिस इज समथिंग कंटिंजेंट। ये अगर मैं बोल रहा हूं कि हो सकता है नहीं हो सकता है, नोबडी नोस। इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं, लाइक द वे बजट्स आर क्रिएटेड, प्रोजेक्शन बोला जाता है कि हाँ यहाँ पे इतना इनकम आने का हम लोग ने एक्सपेक्ट किया हुआ है, दिस विल बी द प्लान विच वी विल प्रोग्रेस। बट वो होगा कि नहीं होगा वो तो टाइम पे ही पता चलेगा। बट लुकिंग एट द करंट स्टेटस, क्या कंपनी इंसॉल्वेंट होगा? नहीं। नाउ इसके साथ एक और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, दैट इज नथिंग बट, तुमने सेबी में सुना होगा, दैट इज द वर्ड क्रेडिट रेटिंग। ओके, नाउ क्रेडिट रेटिंग ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि एज अ लेंडर क्रेडिट रेटिंग के थ्रू भी तुम्हें पता चलेगा कि भाई कंपनी का रीपेमेंट कैपेसिटी कैसा है। गेटिंग इट? भले ही यहां पे अपने को ये वाले चैप्टर में क्रेडिट रेटिंग वर्ड कहीं पे मिलने नहीं वाला, बट वी कैन रिलेट दिस। क्योंकि अगर मैं सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बना रहा हूं, ठीक है चलो रिपोर्ट तो मैंने बना लिया, लेकिन अगर उस कंपनी का मेरे पास क्रेडिट रेटिंग भी आता है तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी कि वेदर इस कंपनी को मुझे पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ये फाइंड आउट करने में सीआर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड क्रेडिट रेटिंग तुमको पता ही होगा, कंपनी खुद तो देता नहीं अपने आप को, देयर आर वेरियस एजेंसीज, लाइक फॉर एग्जांपल क्रिसिल होता है, केयर है, आइक्रा है, फिच इंडिया है, वेरियस एजेंसीज आर देयर। वो लोग पूरा एनालाइज करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को, एंड बेस्ड ऑन दैट फाइनेंशियल्स, बेस्ड ऑन देयर डिस्कशंस, दे गिव द रेटिंग। एन्युअली ये रेटिंग दिया जाता है हर साल, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार जो रेटिंग दिया वो लाइफ टाइम तक रहेगा, नहीं, कभी रेटिंग नीचे भी जा सकता है, कभी रेटिंग ऊपर भी जा सकता है। ऑलराइट, तो दैट वाज द बेसिक पार्ट अबाउट दिस फर्स्ट थिंग। सेकंड, कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में बोला गया है। इट प्रोवाइड्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। ओके, नाउ सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 77 आने वाला है। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू सी समथिंग अबाउट चार्ज, not full chapter about charge but something about charge, and that is related to registration. Okay, चार्ज अगर क्रिएट होता है तो रजिस्टर कैसे करना है, what are the forms you need to file, ये दो तीन चीजें अपने को इस चैप्टर में देखनी है, राइट। कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी एंड consequences ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि चलो लोन तो लिया कंपनी ने, बोरो किया पैसा, एसेट सिक्योरिटाइज किया, लेकिन कंपनी ने चार्ज को रजिस्टर नहीं किया। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, ये भी हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि अगर चार्ज रजिस्टर नहीं होता है तो उसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, राइट। देन द चार्ज इज टू बी रजिस्टर्ड विद द आरओसी एंड वंस इट गेट्स रजिस्टर्ड, आरओसी तुमको क्या दे देगा, सर्टिफिकेट, एंड वो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि भाई चार्ज इज बीइंग रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। एज अ प्रूफ तुम्हारे पास कुछ स्टेटमेंट होना चाहिए ना कि यस फॉलोइंग वाज द फॉर्म फाइल्ड बाय द कंपनी, एंड ये उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। कि अगर वो सर्टिफिकेट अपने हाथ में आ गया, दैट मींस एज अ लेंडर आई विल बी सेटिस्फाइड कि यस चार्ज इज नाउ रजिस्टर्ड। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखो बोरोवर को कुछ फर्क नहीं पड़ता, सच बोलूं, चार्ज अगर रजिस्टर नहीं हो रहा है ना तो लेंडर का हार्ट बीट बढ़ता रहता है, बोरोवर तो उल्टे का चैन का सांस लेगा, सच बोलूं। देखो बोरोवर कौन है यहाँ पे, कंपनी। इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू रजिस्टर द चार्ज। सपोज मैं लेंडर, तुम कंपनी हो, ठीक है, मैंने तुमको पैसा दिया, तुमने मुझे सिक्योरिटी दिया, वो जो लोन का नॉर्मल टर्म्स होता है, बट जो रजिस्ट्रेशन करना था ना वो मैं नहीं करने वाला, वो तुम्हारा ड्यूटी है। तुमने अगर रजिस्टर नहीं किया ना तो मेरा हार्ट बीट बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि देयर इज सम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, देयर इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। वो क्या कॉन्सिक्वेंस है वो हम लोग देखने वाले, बिकॉज दिस इज जस्ट द बेसिक इंट्रोडक्शन। ये चैप्टर में हम लोग चार्जेस के रिलेटेड काफी कुछ चीजें पढ़ने वाले। ऑलराइट, नाउ whenever a charge is created on a property of the company against any borrowings of the company, the same is duly recorded by MCA and posted on its website. It acts as a red herring for any prospective acquirer of such property. Red herring, ये वर्ड तुमने किधर सुना है भाई, याद कराओ मुझे, ये रेड हेरिंग वर्ड किधर सुना है? इट इज द प्रोस्पेक्टस। तुमको याद हो ना, दोज हु आर माय स्टूडेंट्स, में हमेशा बोलता था कि रेड हेरिंग इज अ प्रोस्पेक्टस, जिसमें तुम लोग क्या करते हो, यहाँ पे आधा अधूरा इंफॉर्मेशन देते हो। आई यूज दिस वर्ड, आधा अधूरा। इट इज नॉट द कंप्लीट प्रोस्पेक्टस, राइट? पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस नहीं है, इट इज जस्ट एन इनकम्प्लीट डेटा। यस, हु सेड दैट? यस, कौशल। इट इज इनकम्प्लीट डेटा, मतलब मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने बिकने वाले वो नहीं पता, देन मुझे नहीं पता कि व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ द शेयर, क्योंकि प्राइस बैंड होता है, रेंज होता है, मतलब 100 से लेके 120, बिडिंग वगैरह होता है, ये सब तुमने एग्जीक्यूटिव में देखा है। तो वैसा ही ये वर्ड यहाँ पर है, रेड हेरिंग। सी, इट एक्ट्स एज अ रेड हेरिंग फॉर एनी प्रोस्पेक्टिव एक्वायरर ऑफ सच प्रॉपर्टी। भाई कि अगर तू इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है ना तो याद रख, ये प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ है। जैसे कि एज अ कंपनी जब तुम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की बात करते हो तो तुम इन्वेस्टर को बताते हो कि इसका प्राइस अभी तक फिक्स नहीं है, बिडिंग होगा एंड देन उसके बाद प्राइस फिक्स होगा। दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। बट ये प्रोस्पेक्टस यहाँ पे रिलेट नहीं करना है, यहाँ पे अपने को रेड हेरिंग को रिलेट करना है चार्ज के साथ, राइट? तो देखो, अगर सपोज मैंने लाइक फॉर एग्जांपल एज अ कंपनी मैंने ये मोबाइल दिया सिक्योरिटी में, ठीक है, तो अगर ये मोबाइल मैंने एज अ सिक्योरिटी दिया है, मतलब इस मोबाइल के ऊपर चार्ज क्रिएट हो गया। नाउ अगर तुम में से कोई एक ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो तुम मुझे बोलो, क्या तुम डायरेक्टली खरीद सकते हो? डू यू थिंक सो? कैन यू परचेज दिस प्रॉपर्टी? व्हाट डू यू थिंक? Yes or no? Can you purchase this property directly without any consultation? कुछ भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि एक चीज सोचो, जब भी चार्ज रजिस्टर होता है टाइटल डॉक्यूमेंट्स किसके पास होते हैं? बोरोवर के पास के लेंडर के पास? चार्ज रजिस्टर होता है तो टाइटल डॉक्यूमेंट्स is with the lender, and since you don't have the title documents, can you sell that property? No. And when you cannot sell that property, can anybody acquire that property? No. तो इसमें बैंक को तो बीच में लाना ही पड़ता है। यस, इट इज पॉसिबल, ठीक है। सेक्शन 79 करके एक सेक्शन है जो बोलता है कि प्रॉपर्टीज अंडर चार्ज कैन आल्सो बी अक्वायर्ड। सेक्शन 79 ऑफ कंपनीज एक्ट है जो बोलता है कि प्रॉपर्टी अंडर चार्ज कैन आल्सो बी अक्वायर्ड। ऑलराइट, इफ फ्लोटिंग चार्ज देन यस, ओके। तो ये एक इंटीमेशन हो जाता है, एज आई सेड, कि तुम बोलोगे कि सर मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदा बट मुझे पता नहीं था कि इसके ऊपर चार्ज रजिस्टर था। भाई तेरा गलती है, मैं खुला बोलेगा तेरा गलती है। क्यों पता है क्या? कंपनीज एक्ट क्या बोलता है पता है? कि अगर एक पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर चार्ज रजिस्टर हो गया, ठीक है, कंपनी ने एक चार्ज रजिस्टर किया, तो उसका डेटा एमसीए के वेबसाइट पे दिखता है। यस और नो? द आंसर इज यस।
स्ट्रेट अवे दिखता है, 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। तुम लोग गूगल भी करोगे ना तो भी तुम लोग कोई कंपनी का डिटेल डालो, फॉर एग्जांपल इफ यू गूगल इट, अगर ट्राई करना हो, सी those who have done those who have the access of this MCA website, like I know few of them के they are working as well, तो I know they know the website of MCA। बट अगर तुम लोग ने कभी इस कंपनीज एक्ट के रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल काम नहीं किया है ना, एक छोटा सा काम बोलता हूँ, फ्री जब होगे ना तो गूगल करना MCA 21 मास्टर डेटा, ठीक है, यू विल गेट, गूगल में पहला ही लिंक मिलेगा मास्टर डेटा, उसके ऊपर क्लिक करो और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड डाल दो, मुकेश अंबानी का कंपनी के नाम का ऐसा आएगा, फर्स्ट कॉलम विल बी नेम ऑफ द कंपनी, सेकंड कॉलम विल बी सिन, अभी तुमको कंपनी का सिन तो पता नहीं होगा तो नाम डाल दो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसको सिलेक्ट करो, कैप्चा कोड आता है, कैप्चा कोड, वो आड़े टेढ़े अक्षर होते हैं ना जिनका कोई इज्जत ही नहीं होता, वो कैप्चा कोड डालो एंड यू विल डायरेक्टली गेट द डिटेल्स ऑफ रिलायंस, पूरा का पूरा चिट्टा मिलेगा तुम लोग को कि रिलायंस का ऑथराइज कैपिटल कितना है, पेड अप कैपिटल कितना है, उसके डायरेक्टर्स कौन कौन है, एंड वो डायरेक्टर्स के कॉलम के नीचे तुमको चार्ज का पूरा लिस्ट मिलेगा, रिलायंस ने अब तक जितने भी चार्जेस रजिस्टर किए हैं सबका लिस्ट मिलेगा। तो क्या, मुझे एक चीज का आंसर दो, क्या ये पब्लिकली अवेलेबल है, यस और नो, क्या ये चीज पब्लिकली अवेलेबल है? अगर मैं बोलता हूं कि एमसीए के वेबसाइट पे स्ट्रेट अवे तुमको दिख जाएगा, कहना ऐसे कि दिस इज पब्लिकली अवेलेबल, यस। तो अगर तुम याद रखना कंपनी से प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार चेक कर लो कि क्या इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई चार्ज रजिस्टर हुआ है, क्या नहीं किया तुम्हारा गलती है। इसलिए इट इज अ रेड हेरिंग कि भाई इस कंपनी के ऊपर चार्ज, सॉरी इस कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएटेड है, तूने इंक्वायरी नहीं किया ना तो तेरा गलती है, कंपनी का गलती नहीं है। स्ट्रेट अवे इट इज रिटन, तुम लोग मानोगे नहीं, कंपनी लॉ में where you have this chapter, वहां पे एक पैराग्राफ स्ट्रेट अवे लिखा गया है, इट इज अ डीम्ड नोटिस टू द होल वर्ल्ड, ऐसा लिखा गया है लिटरली, इट इज अ डीम्ड नोटिस टू द होल वर्ल्ड कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएटेड है, डीम्ड नोटिस, कोई इंडिविजुअली तुमको नोटिस देने नहीं आया, बट इट इज अ डीम्ड नोटिस कि भाई इस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएटेड है। तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तू चेक करेगा कि वेदर यू शुड अक्वायर दिस प्रॉपर्टी और नॉट। एंड यस, फाइनल थिंग, तुम चार्ज वाली प्रॉपर्टी को खरीद सकते हो, समवन सेड फ्लोटिंग, नॉट नेसेसरी, फिक्स्ड रहेगा ना तो भी मैं बोलता हूं खरीद सकते हो, बट इन दैट केस मॉडिफिकेशन होगा। तुम लोग को पता है व्हाट इज मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, के वहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो जाते हैं, तो वो मॉडिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन फिर से करना पड़ेगा। लाइक इफ यू रिमेंबर योर सेक्शन 79, उसमें लिखा है स्ट्रेट अवे दैट सेक्शन 77 विल अप्लाई इन सर्टन केसेस। 77 मतलब क्या, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यहाँ पे जो 77 मैंने लिख के रखा है दैट इज नथिंग बट रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, ओके। 79 स्ट्रेट अवे बोलता है कि इट इज एप्लीकेबल, कि कभी भी कुछ मॉडिफिकेशन होता है ना, मान के चलो उस प्रॉपर्टी का ओनर चेंज हो गया, फॉर एग्जांपल मैं देखो ध्यान से, तुम लेंडर हो, मैं वो कंपनी हूं, तो तुमने मुझे लोन दिया, मैंने ये क्या बोलते हैं, ये एसेट तुमको दिया, राइट नाउ। अगर एक थर्ड पर्सन ये एसेट खरीदना चाहता है तो क्या मैं पिक्चर से हट गया? सोच समझ के आंसर दो, क्या मैं पिक्चर से हट गया? अगर थर्ड पर्सन ये प्रॉपर्टी खरीद लेता है तो क्या मैं पिक्चर से हट गया? यस, देयर विल बी द मॉडिफिकेशन, क्योंकि अभी मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं रहा, मैंने ये प्रॉपर्टी थर्ड पर्सन को दे दिया है। डेफिनेटली आई विल बी कंसल्टिंग विद द लेंडर, हाँ, ऐसा उसको चोरी छुपे नहीं करने का, चोरी छुपी किया ना तो फ्रॉड हो जाएगा। लेंडर को कंसल्ट करके यस द प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड, क्योंकि तुम सोचो अगर तुम लेंडर हो, तुमको किससे मतलब है, प्रॉपर्टी से कि रीपेमेंट से, किससे मतलब है तुम लोगों को, बोलो, मैं दूं या थर्ड पर्सन दे, तुमको किससे मतलब है? रीपेमेंट से मतलब है ना, बस बात खत्म, चाहे मैं दूं या वो दे। देखो ओनर हैज चेंज्ड, तो ये होता है मॉडिफिकेशन, ये बोला गया है सेक्शन 79 में। ये सेक्शन 79 बोलता है कि अगर ऐसा कुछ जोल जपाट होता है कि ओनर चेंज हो गया, ये वो ट्रांजैक्शन हुआ, तो 77 फिर से फॉलो कर, मॉडिफिकेशन का एप्लीकेशन डाल या एक्विजिशन का एप्लीकेशन डाल, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, एंड यस मैं हट जाऊंगा, मेरे जगह पे वो थर्ड पर्सन आ जाएगा, नाउ दैट थर्ड पर्सन इज गोइंग टू रीपे यू द मनी, दैट इज अलाउड, ओके। नाउ आगे बढ़ते, इट इंटीमेट्स the person acquiring the property so charge is created, ये पॉइंट हो गया। intimates मतलब it informs, it is a intimation to the company कि भाई इस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ है,
तो तू अगर ले रहा है इस प्रॉपर्टी को तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको प्रॉपर्ली फुलफिल करना. ओके. नाउ रेड हेरिंग. नाउ रेड हेरिंग, सी रेड हेरिंग इज अ वर्ड. ठीक है. नाउ एक चीज और, अभी रेड हेरिंग का अगर तुम मतलब पूछ रहे हो तो रेड हेरिंग है ना एक वर्ड है. इफ यू गूगल इट यू विल फाइंड सम अदर मीनिंग, क्योंकि इंग्लिश में रेड हेरिंग थोड़ा अलग ही लेवल पे जाता है. सो अगर गूगल करके देखोगे ना तो तुमको रिलेट नहीं कर पाओगे. यू रिलेट इट विद कंपनीज एक्ट, इट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज गिवन टू रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के पॉइंट पे कि भाई इसका प्राइस बैंड वगैरह फिक्स नहीं है. क्योंकि मैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दे रहा हूं ना तो तुमको पता होना चाहिए कि भाई देयर इज गोइंग टू बी अ बिडिंग. तुम बोलोगे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस 100 रुपए का शेयर दे दो, नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा. देयर इज अ प्राइस बैंड, रेंज होता है. बेसिक लैंग्वेज में बोलूं तो देयर इज अ रेंज, 100 रुपए से लेके 120 रुपया, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है वैल्यू, बिडिंग होता है. तो मैं भी नहीं बोल सकता फिलहाल. तो ये मैंने एक इंटीमेशन देके रखा है ना. सेम वे चार्ज का रजिस्ट्रेशन भी एक रेड हेरिंग है. रेड हेरिंग इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ इंटीमेशन गिवन. ओके. रेड हेरिंग इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ इंटीमेशन गिवन कि भाई अगर तू ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है ना तो खरीद, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी कंपनीज एक्ट का प्रोविजन है वो तुझे फॉलो करना पड़ेगा. रजिस्ट्रेशन फिर से करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि देयर इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन इनटू दिस चार्ज. ऑलराइट. नाउ see the next para, purpose and objective of search and status report. Right, अभी intro we have not discussed this para, but इसका कुछ चीज तो इंट्रोडक्शन में ही कवर हो गया. राइट. द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प द लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स. यहाँ पे एक वर्ड ऐड हो गया इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा ये प्रोस्पेक्ट हो जाता है कि भाई सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट निकालो कंपनी का. बड़ा देखो एज अ नॉर्मल शेयर होल्डर तुम लोग अगर 15-20 हजार के शेयर खरीद रहे हो और बोलोगे हाँ सर सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट निकाला, तो मैं पहले हंसूंगा, क्योंकि सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट निकालने का ही खर्चा आ जाएगा तुम लोग को. तो 15-20 हजार के इन्वेस्टमेंट में तुम लोग 5-6 हजार का खर्चा कर रहे हो, तो वो तो इट इज नॉट फेयर इनफ. इफ यू आर मेकिंग समथिंग ह्यूज, बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ये सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट निकालोगे तो मुनासिब होगा. ऑलराइट. It gives lenders and investors an insight into the company through its history and provides all the necessary details of the company and its director, as well as credit history of the company and its directors. Okay. It helps the lenders and investors to take rational decisions on quantum of loan investment, sufficiency of security and its nature and other such requirements. So ये paragraph के ऊपर मैं ज़्यादा highlight नहीं डालूंगा. This is nothing but what we have done in introduction. Okay. Main objective क्या है वो भी similar ही होने वाला है. The main objective of search and status report is to help the lenders and investors to take an informed decision. देखो आंख informed decision का उल्टा बोलता हूं, आंख बंद करके decision नहीं लेना है. You should be aware what decision you are going to take. इसको बोला जाता है informed decision. It gives lenders, investors an insight into the company through history and all the details of company directors वगैरह वगैरह. Right? Rational decision. Same point फिर से आ रहा है, जाने दो. MCA 21 जो मैं चार्जेस के बारे में बात कर रहा था. सी MCA 21 इफ आई ओपन द वेबसाइट, यहाँ पे MCA सर्विस, कंपनी मास्टर डेटा, व्यू, देखो यहाँ पे व्यू कंपनी मास्टर डेटा एज आई वाज सेइंग. अभी मैं यहाँ पे रिलायंस का नाम डालता हूँ. राइट. रिलायंस इंडस्ट्रीज. देखो सर्च करूंगा तो मुझे दिखेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा एंड ये सिन आ गया ऑटोमेटिकली. अभी ये लसीस डालना पड़ेगा मुझे, LASISH. अभी ये मैंने सर्च किया. नाउ सी दिस इज जस्ट द बेसिक डिटेल्स ऑफ रिलायंस. सब पूरा देखो, उसका सिन नंबर क्या है, नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है, ये वो, ये देखो चार्जेस का डिटेल्स आ गया. पॉइंट जो मैं तुम लोग को बता रहा था. तो देखो अभी ये अमाउंट कैलकुलेट नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि करोड़ों हजार करोड़ होंगे पता नहीं. देयर आर मेनी चार्जेस. सी मूवेबल प्रॉपर्टी, ये वो, इमूवेबल प्रॉपर्टी कितने रुपए का था, मतलब अभी 200 करोड़ कुछ तो है, आई डोंट नो. क्लोज 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 मतलब क्या, रीपे कर दिया है. अगर किधर एक्टिव लिखा है तो अभी तक रीपे करना बाकी है. वी विल सी इज देयर एनी एक्टिव लोन. देखो यार ओपन, इफ यू सी देखो यहाँ पे वर्ड ओपन लिखा है, मतलब ये लोन अभी भी चल रहा है, रीपे नहीं हुआ. राइट.
तो दिस इज द वे हाउ यू कैन स्टार्ट विद दिस सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट. ओके, यूजफुल होता है. ये चार्जेस वगैरह तुम लोग इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो. ओके, नाउ स्कोप एंड इंपॉर्टेंस पे जाते हैं. ऑलराइट, नाउ सबसे पहला इंपॉर्टेंस होता है फॉर बैंक्स. क्यों बैंक? क्योंकि आजकल तुम लोग ने काफी फ्रॉड्स के बारे में सुना है, काफी स्कैम के बारे में सुना होगा. बैंक ऐसे ही, मतलब अभी तो ये बहुत कम हो गया, बट फॉर एग्जांपल ये विजय माल्या का ले लो, हर्षद मेहता का जो तुम लोग ने स्कैम का अगर सीरीज देखा हो तो वो ले लो. समवेयर डाउन द लाइन बैंक्स वेर कनेक्टेड इन द फ्रॉड एज वेल, क्योंकि बैंक्स के साथ छेड़खानी हो गया था. अभी वो बैंक उसमें मिले हुए थे कि नहीं मिले हुए थे, अपने को वो सोचने की जरूरत नहीं है कि वो विजय माल्या ने बैंक को बेवकूफ बनाया कि हर्षद मेहता ने बैंक्स को बेवकूफ बनाया. दैट इज नॉट द क्वेश्चन. बट द मेन थिंग इज बैंक अपने पैसों को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट निकालता है. राइट, कोई भी अभी इंडिविजुअल का सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट नहीं निकालेगा, वो भी मैं बोल देता हूं. हाँ, तुम बोलोगे सर मुझे लोन चाहिए, तो क्या बैंक मेरा सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट निकालेगा? मैं बोलूंगा तेरा डेटा किधर है, तेरा डेटा है क्या किधर, तेरा नाम, एड्रेस, चल वो मिल गया, तेरा कौन सा तूने लोन लिया है, ये वो सब नहीं निकालेगा. हाँ, वो एक चीज खाली देखेगा, तेरा सिबिल रेटिंग. अगर तेरा सिबिल रेटिंग खराब है मतलब वो समझ जाएगा कि तू कहीं ना कहीं डिफॉल्ट किया है. राइट, बट यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल को लोन देने की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम लोग कंपनी को लोन देने की बात कर रहे हैं. तो अगर वो एक बैंक कंपनी को लोन देना चाहती है तो सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट उस बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, नाउ सी क्या बोला गया इसके अंदर. Search and status report are basic tools for banks to know the viability of their customers who approach the bank for cash credit limits, term loans or otherwise. The sole motto of the bank is to provide loans against interest. Hence, knowing the current position of the assets being pledged by the companies become important, and only way to know whether such property is already pledged to some other bank or not is the search report. आ गया point. सर्च रिपोर्ट निकालता अभी मैं रिलायंस का. राइट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दिया हुआ, इमूवेबल प्रॉपर्टी. राइट, इफ यू सी नाउ ये जो दिख रहा है इसके ऊपर 4,12,000 सॉरी 41,25,000. ओके, अभी सपोज ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी था जो भी है, राइट, तो अगर इस सेम प्रॉपर्टी के ऊपर मुझे ये लोन लेना होता तो क्या इस प्रॉपर्टी को इस लोन को क्लोज कर दिया गया है, ये चेक करना जरूरी है. क्योंकि अगर जैसे कि वो ओपन वाला मैंने तुम लोग को दिखाया, किधर गया, अभी ये ओपन वाला है. राइट, मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट बीइंग प्लेज्ड. ठीक है, तो ये जो ओपन कैटेगरी है जो भी उसके अंदर प्रॉपर्टी, राइट, लेट अस से कि रिलायंस का एक प्लांट इज द सिक्योरिटी गिवन बाय रिलायंस फॉर दिस ओपन लोन व्हिच इज टेकन ऑन 24th June 2020. ऑलराइट, नाउ इन दैट केस अगर मुझे वही प्रॉपर्टी के रिलेटेड लोन देना था, रिलायंस मेरे को बोलता है कि सर ये लो मेरा जामनगर वाला प्लांट एग्जांपल, एंड अगर सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट में नहीं निकालता तो मुझे पता नहीं चलता कि जामनगर वाला प्लांट के ऊपर ऑलरेडी सिक्योरिटी करके रखा है. ठीक है, मान के चलो मैं आईसीआईसीआई बैंक, बराबर, रिलायंस ने एचडीएफसी से ऑलरेडी 1,000 करोड़ का लोन लेके रखा है और रिलायंस ने सिक्योरिटी में जामनगर वाला रिफाइनरी रखा है. फिर रिलायंस आता है आईसीआईसीआई के पास, बोला मेरे को, मैं आईसीआईसीआई, मुकेश भाई मेरे को बोलता है कि सर जामनगर वाला प्लांट अपना रेडी है, सिक्योरिटी में देता हूं, लोन दोगे क्या 2,000 करोड़ का? मैं बोलेगा देगा ना भाई, क्यों नहीं, लेकिन रुक जा, पहले मेरे को सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट निकालने दे, क्योंकि तू शायद झूठ बोल सकता है लेकिन तेरा रिपोर्ट झूठ नहीं बोलेगा. बराबर के नहीं? लाइक फॉर एग्जांपल अभी आजकल कोविड का सीन चल रहा है बहुत सारा, तो तुमको अगर खांसी आता है तो नहीं नहीं नॉर्मल खांसी है, बहुत सारे जन ऐसा होता है, मला काही नाही झालं, मी तर असंच बाहेर फिरतो, नॉर्मल खांसी है, वर्षा नहीं येते मला, जो भी है, यू विल बी लाइक दैट. लेकिन अगर टेस्ट किया तो पता चलेगा कि भाई एक्चुअल में ये कोविड रिलेटेड सिम्टम है कि नहीं, तो रिपोर्ट शायद झूठ नहीं बोलेगा, तू झूठ बोल सकता है. तो आईसीआईसीआई बैंक का मैनेजर भी मुकेश भाई को वही बोलता है कि रुक जा, तेरे को मैं लोन देगा 2,000 करोड़ क्या 2,500 का देगा, लेकिन पहले मुझे सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट निकालने दे. तो रिलायंस के असेट्स के ऊपर सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बनाया जाएगा, एंड अगर पता चला कि ये जामनगर वाली रिफाइनरी पे एचडीएफसी ऑलरेडी 1,000 करोड़ का कोटा रख के बैठा है, तो भाई मैं सावचेती में लोन देगा, मैं देखेगा कि अरे ये तो पहले लोन लेके बैठा है, कल को अगर लोचा होता है तो पहले एचडीएफसी अपना 1,000 करोड़ लेके जाएगा, बाद में अगर कुछ पैसा बचा तो मैं शायद रिकवर कर पाऊंगा ना. तो ये सीन ना हो इसीलिए सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट
इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके लिए? बैंक्स के लिए। समझ में आ रहा है तुम लोग को व्हाई दिस इज नेसेसरी फॉर बैंक? ये रिलायंस वाला एग्जांपल तुम लोग को क्लियर हुआ जो मैंने दिया एचडीएफसी और आईसीआईसीआई का? बराबर, गुड। हाँ, एंड हाँ एक चीज बता, नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, पता है तुम क्या, डू यू नो दैट एक प्रॉपर्टी के ऊपर दो जन चार्ज क्रिएट कर सकता है? आर यू अवेयर अबाउट इट? ऐसा नहीं है कि एक जामनगर का रिफाइनरी, सपोज जामनगर की रिफाइनरी का वैल्यू है 5,000 करोड़, ठीक है? जामनगर का जो रिफाइनरी है, जामनगर इज अ सिटी इन गुजरात, वहां पे रिलायंस का ऑयल रिफाइनरी है। तो अगर उसका एक्चुअल वैल्यू है 5 करोड़, एचडीएफसी 1,000 करोड़ का लोन लेके बैठा है, क्या आईसीआईसीआई 2,000 करोड़ का लोन देगा? बोलो, सोच के बोलो, लोन देगा वो? देगा बिंदास, क्योंकि भाई 5,000 का एसेट है। अगर एचडीएफसी 1,000 करोड़ लेके भी जाता है तो भी 4,000 करोड़ बचा ना, मेरा पैसा सेफ है। तो ये सब कब पता चलेगा? सोचो, सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट निकाला तभी पता चलेगा ना। अगर सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट ही नहीं होता तो क्या पता चलता? कुछ भी नहीं, राइट? नाउ following basic information about existing loans taken by the company can be assessed through such reports. देखो आ गया पॉइंट, कलर चेंज कर देता हूं जरा मैं। The following information about existing loans taken by the company is given by the company secretary through such reports. भाई ये रिपोर्ट कौन बनाने वाले? तुम लोग बनाने वाले हो। सोचो, मुकेश अंबानी तुम्हारे पास आएगा कि फॉर एग्जांपल गुजराती हूँ, मोटा भाई આપણે લોન જોઈએ છે, मतलब लोन चाहिए, राइट? तो तुम लोग उसको बोलो कि हाँ मोटा भाई, सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बना के देंगे हम लोग, बाद में तुमको लोन मिलता है तो ले लो। बैंक मांगे उसके पहले तुम ही लेके चले जाओ कि भाई ये रहा देखो सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट। यू कैन डू दैट, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भाई उसके ऊपर कंपनी सेक्रेटरी का थप्पा लगता है। एंड हाँ, तुम लोग कोई गलत काम करने नहीं बैठे हो, ठीक है? हाँ, फिर भी अपनी बैंक अपनी तसल्ली के लिए खुद निकालना चाहे तो निकालने दो, वो उसका खर्चा है। ओके, दैट इज वाई कंपनी सेक्रेटरी का जॉब बैंक में भी बहुत फ्रूटफुल होता है। डोंट थिंक कि तुम लोग अगर कंपनी सेक्रेटरी हो तो खाली प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, लिस्टेड लिमिटेड में ही, सॉरी लिस्टेड लिमिटेड क्या बोल रहा हूँ, लिस्टेड कंपनी में ही खेलोगे। इट इज लाइक इवन बैंक्स नीड यू, ये चीज याद रखना। नाउ सी व्हाट, अगर तुम उस सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट निकालते हो तो क्या क्या चीजें तुम लोग को पता चल सकती है, राइट? द डेट ऑफ लोन टेकन एंड द चार्ज क्रिएटेड इन सच रिस्पेक्ट। वापस अपना रिलायंस का चिट्ठा खोलते ना, ये देखो, सी द हेडिंग डेट ऑफ क्रिएशन, बराबर? मतलब अभी फॉर एग्जांपल ये पहला जो कॉलम है यहाँ पे 23/7 मतलब जुलाई, 23 जुलाई 2007 को लोन लिया गया था, राइट? एंड इसको क्लोज भी किया गया था, राइट? अभी लोन थोड़ा पहले लिया रहेगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के लिए टाइम लिमिट होता है, चार्ज का जो क्रिएशन होता है। ओके, तो डोंट गो ऑन द एग्जैक्ट डेट्स, बट लेट अस अज्यूम कि लोन भी 23 जुलाई को ही लिया था, उसको मॉडिफाई किया 20 नवंबर 2007 को। तो ये सारी चीजें मुझे पता चलती है। तो एज आई सेड, सबसे पहला पॉइंट था द डेट ऑफ लोन टेकन, देन नेम एंड एड्रेस ऑफ द चार्ज होल्डर्स। अभी ये तुम लोग को नेम एंड एड्रेस इधर दिख रहा है क्या? चार, एक मिनट, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज होल्डर? वो तो मैं पूछना ही भूल गया, चार्ज होल्डर मतलब क्या? चार्ज होल्डर मतलब मान के चलो तुम कंपनी हो, मैं लेंडर हूं, मैंने तुम्हें पैसा दिया, तुमने मुझे क्या दिया? सिक्योरिटी दिया। वो सिक्योरिटी के ऊपर क्या मेरा लीगल इंटरेस्ट है? एक्चुअल इंटरेस्ट नहीं, लीगल इंटरेस्ट है। हाँ या ना? लीगल इंटरेस्ट है मेरा, एसेट तुम्हारा, इंटरेस्ट मेरा, तो मैं कौन हो गया? चार्ज होल्डर। ठीक है, मैं कौन हो गया? चार्ज होल्डर। याद रखना, चार्ज होल्डर इज ऑलवेज द लेंडर। सिंपल वे में बोलूं, लेंडर। क्यों? क्योंकि चार्ज होल्डर का एक बहुत बड़ा चार्ज होल्डर का एक बहुत बड़ा पॉइंट बोला जाता है कि चार्ज होल्डर इज नथिंग बट द पर्सन हु हैज अ लीगल इंटरेस्ट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। ओके, जिसके फेवर में चार्ज क्रिएट किया है, यस, जिसके फेवर में, तो वो लेंडर ही होता है। ऑलराइट, नाउ सेकंड पॉइंट में क्या पता चल रहा है? द टाइप ऑफ चार्ज, वेदर, एक मिनट, टाइप ऑफ चार्ज, अभी फिक्स चार्ज फ्लोटिंग चार्ज को इधर बीच में मत लाना, ठीक है? वो तो कॉमन सेंस है। अभी तुम लोग प्रोफेशनल हो, किसी को भी पता चलेगा लैंड एंड बिल्डिंग है तो फिक्स चार्ज होगा, डेटर वेटर के ऊपर चार्ज लेके रखा है तो फ्लोटिंग चार्ज होगा, राइट? वी नो दैट। बट व्हाट इज दिस वेदर चार्ज और कंसोर्शियम चार्ज? अभी ये ज्वाइंट चार्ज और कंसोर्शियम चार्ज क्या है, ये समझना जरूरी है। क्या, अभी ज्वाइंट चार्ज पहले समझाता हूं। ज्वाइंट चार्ज, रिलायंस का जामनगर का रिफाइनरी 5,000 करोड़ का वैल्यू, बराबर? रिलायंस को चाहिए 4,000 करोड़, गया एचडीएफसी के पास, बराबर? गया एचडीएफसी के पास, रिलायंस का मुकेश भाई बोलता है
एचडीएफसी 4,000 करोड़ का लोन चाहिए। एचडीएफसी बोला भाई वो खाते में उतना है नहीं, 2,000 करोड़ तक का मैं दे सकता है। मुकेश भाई बोला अरे रे लोचो मायरो, बराबर के नहीं, मेरे को तो 4,000 करोड़ चाहिए। तो एचडीएफसी बोलता है रुक जा, मैं एक फोन करता है। तो एचडीएफसी ने फोन किया आईसीआईसीआई को कि आईसीआईसीआई अपना मुकेश भाई को 4,000 करोड़ का लोन चाहिए, मेरे खाते में तो 2,000 करोड़ है, क्या तू 2,000 करोड़ देगा क्या? आईसीआईसीआई बोला चल देगा। तो दिस बिकम्स जॉइंट चार्ज। क्या दोनों ने साथ में एक लोन दिया? आया ना? क्या दोनों ने साथ में एक लोन दिया? क्या दोनों ने साथ में एक लोन दिया? यस, दोनों ने साथ में एक लोन दिया। तो जब दोनों ने साथ में एक लोन दिया, प्रॉपर्टी एक था, इसको बोला जाता है जॉइंट चार्ज। इसको क्या बोला जाता है? जॉइंट चार्ज बोला जाता है। ठीक है, कीप इन योर माइंड, इसको क्या बोला जाता है? जॉइंट चार्ज। के जब दो साथ में, दो एंटिटी या दो लेंडर साथ में लोन देते एक बंदे को, मतलब एक कंपनी को, तो दैट बिकम्स द जॉइंट चार्ज। देन व्हाट इज दिस कंसोर्शियम चार्ज? कंसोर्शियम का मीनिंग पहले समझ लो, इट इज नथिंग बट पूल ऑफ फंड्स, मिलजुल के, मिलजुल के। अभी ये मिलजुल के एक साथ नहीं है। कंसोर्शियम चार्ज मतलब चलो मान के चलो, अगेन मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं तुम लोग को, सेम अपना जामनगर रिफाइनरी। मुकेश भाई को चाहिए था 1,000 करोड़ का लोन। अपने जामनगर रिफाइनरी का वैल्यू कितना है? वैल्यू कितना है? $5,000 करोड़ का है कि नहीं? कमिंग बैक टू द पॉइंट, अपने असेट का वैल्यू था 5,000 करोड़। रिलायंस को चाहिए था 1,000 करोड़ का लोन, एचडीएफसी ने दिया। रिलायंस को चाहिए 2,500 करोड़ का, सॉरी चलो 2,000 करोड़ का एक्स्ट्रा लोन चाहिए रिलायंस को। फिर से एक साल बाद 2,000 करोड़ का नीड अराइज हुआ, तो रिलायंस फिर से गया एचडीएफसी के पास। एचडीएफसी बोला नहीं भाई, अपने पास तो 2,000 ही था, 1,000 तुझे दे दिया, अभी 2,000 और एक्स्ट्रा कहां से दूं? मेरे देखो, रिलायंस को ऑलरेडी 1,000 करोड़ का लोन दिया है, बराबर। सेकेंडली एक साल के बाद रिलायंस फिर से जाता है एचडीएफसी के पास, बोला 2,000 करोड़ दे, लेकिन एचडीएफसी के पास उतना फंड्स ही अवेलेबल नहीं है। तो रिलायंस गया आईसीआईसीआई के पास, आईसीआईसीआई ने लोन दे दिया 2,000 करोड़ का। सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट निकाला, जामनगर रिफाइनरी का वैल्यू 5,000 करोड़ है, आईसीआईसीआई ने दिल खोल के 2,000 करोड़ का लोन दिया। तो दिस काइंड ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज कंसोर्शियम चार्ज, बराबर। कंसोर्शियम मतलब इसको जॉइंट मत बोलो, दोनों ने एक साथ नहीं दिया है ना। दिस बिकम्स कंसोर्शियम चार्ज। ओके, अमाउंट ऑफ लोन तो तुमने वो देख ही लिया, देखो अमाउंट ऑफ लोन भर भर के दिया हुआ है, करोड़ों में अमाउंट ऑफ लोन है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में अमाउंट ऑफ लोन। प्रॉपर्टी चार्ज प्लेज्ड अगेंस्ट सच लोन, मूवेबल है कि इमूवेबल है वो भी पता चल जाएगा। एंड टर्म्स एंड कंडीशन, अभी यहाँ पे देखो टर्म्स एंड कंडीशन पता नहीं चलेगा, ठीक है। अभी अगर तुम लोग को टर्म्स एंड कंडीशन जानना है तो मेरे को 100 रुपया गूगल पे करो, मैं तुम लोग को दिखा देगा ओपन करके। आई कैन डाउनलोड एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, बट वो सब अपने को नहीं करना है। टर्म्स एंड कंडीशंस, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, टर्म्स ऑफ रीपेमेंट वगैरह, मार्जिन मनी मतलब कितना मिनिमम मनी तुम लोग को एज अ, बोलते हैं ना काफी बार तुम लोग लोन लेते हो तो पहले इतना भरो, बाकी का तुम लोग को हम लोग लोन में करके दे देंगे। तो एनी काइंड ऑफ मार्जिन मनी इफ यू हैव। एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन मतलब कब तक ये लोन तुम्हारा चलने वाला है। ओके, ये सारी चीजें तुम लोग को अगर जाननी है तो तुमको क्या चाहिए, तुम्हारा लोन एग्रीमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए। इफ यू वांट टू नो द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑल दिस पर्टिकुलर डिटेल्स, डू यू नीड रेट ऑफ इंटरेस्ट? यस। तो ये सब रेट ऑफ इंटरेस्ट जानने के लिए तुम लोग को व्हाट यू कॉल 100 रुपया, आई थिंक ज्यादा हो चुका है, बढ़ चुका है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। जो भी है 100 200 जो भी है, जो भी अपने को भाव से कुछ लेना देना नहीं है। कभी 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 फीस है ना कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है, सो वो सब जाने दो। कंसोर्शियम चार्ज मींस मल्टीपल चार्ज ऑन सिंगल प्रॉपर्टी, यस। जॉइंट चार्ज इज सिमिलर टू कंसोर्शियम चार्ज, नॉट 100% आई कैन से, बट हाँ जॉइंट चार्ज में क्या है, देख अभी अभी फॉर एग्जांपल जॉइंट अकाउंट क्या होता है अपना, ये जो भी whosoever your Lenovo, please write your name so that I can communicate। मुझे पता है तुम्हारे पास Lenovo का डिवाइस है, बट राइट योर नेम। तो जॉइंट अकाउंट क्या होता है कि तुम फॉर एग्जांपल यू एंड योर फादर, यू बोथ वेंट फॉर ओपनिंग अ जॉइंट अकाउंट, तो तुम दोनों ने एक साथ फॉर्म भरा ना, तो वो होता है जॉइंट चार्ज, राइट। कंसोर्शियम चार्ज में तुम लोग सिमिलर नहीं बोल सकते। कंसोर्शियम चार्ज मतलब कि एक एसेट के ऊपर मल्टीपल चार्जेस क्रिएटेड है बाय डिफरेंट
लेंडर्स एंड नॉट एट द सेम टाइम, अलग अलग टाइम पे, तो वो कंसोर्शियम हो गया. 100% सिमिलर नहीं बोल सकता, बट हाँ थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, क्योंकि जॉइंट में भी देर इज मोर देन वन लेंडर एंड इवन इन कंसोर्शियम देर इज मोर देन वन लेंडर. दोनों का अगर सेम मीनिंग में बोलना चाहूं ना, सिचुएशन अलग है लेकिन मीनिंग सेम है, क्या कि मोर देन वन लेंडर. ठीक है. चलो, एनी डाउट इन दिस फर्स्ट पॉइंट के बैंक को क्यों जरूरत है, क्या है क्या नहीं, कुछ पूछना करना है? गुड, वेरी गुड. चलो, तो सेकंड पॉइंट पे जाते हैं, बाय डायरेक्टर. अभी ये डायरेक्टर क्या करेगा चार्ज का वो देख लेते हैं. अभी छोटा मोटा काम है, क्योंकि मेन तो देखो बैंक का ही मेन पर्पस है. नाउ व्हाई बाय डायरेक्टर्स? एन इंडिविजुअल बिफोर बिकमिंग द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मे गेट सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट फ्रॉम अ प्रोफेशनल to know the present directors, to know the assets and liabilities, to know the complete history as per ROC records. Now for example, अगर मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर बनने वाला हूं, तुम जॉब के लिए अप्लाई करते हो, राइट? क्या तुम उस कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करोगे? यस और नो? यस ऑफ कोर्स. ऐसा तो नहीं कि हाँ चलो जॉब पे बुला दिया, ऐसा नहीं करने का, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो एक बार मेरे जैसे सीन हो जाएगा. 3 दिन में मेरे को छोड़ के भागना पड़ा था. जस्ट ऑन थर्ड डे आई डिड नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकलशिप की बात कर रहा हूं मैं. मैंने मेरे एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स के साथ ये मैटर शायद शेयर भी किया हो, जो भी है, अभी नहीं हुआ तो आई एम नॉट गोइंग टू शेयर दैट अगेन, बट यस. तो यू शुड ऑलवेज नो द कंपनी वेर यू आर गोइंग टू वर्क. सेम वे अगर तुम डायरेक्टर हो, ओके, तो यू शुड नो कि भाई तुम जिस कंपनी में जा रहे हो ना, वो कंपनी का स्टेटस क्या है, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर कौन है, क्या कोई फ्रॉडस्टर बैठा है क्या? अभी लाइक फॉर एग्जांपल यू ओनली टेल मी देयर इज अ कंपनी इन विच विजय माल्या इज द एग्जिस्टिंग डायरेक्टर, जाओगे? यस और नो? जाओगे कि नहीं जाओगे? विजय माल्या इज द एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, लुकिंग एट द सिचुएशन ऑफ किंगफिशर एंड ऑल. तुम लोग नहीं जाओगे, क्योंकि तुम लोग को ऐसा सेंस, एक सेंस ऑफ डाउट आएगा कि ये तो साला चोर है, ये झोल झपाट किया है पूरा, किंगफिशर के नाम पे दुनिया भर का पैसा खा गया है, 9,000 करोड़ का कुछ बड़ा सा फ्रॉड किया है, ये वो. क्या पता इस कंपनी में भी फ्रॉड करे एंड उसके फ्रॉड के चक्कर में हम लोग भी फंस जाए. पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि फंसोगे तुम लोग, बट पॉसिबिलिटी है. तो टू ऐसा सब ना हो, तो इसीलिए सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट डायरेक्टर के लिए भी जरूरी हो जाता है. नॉर्मली इट इज वेरी रेयर कि डायरेक्टर सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट निकालेगा, उसकी जरूरत नहीं है, कि डायरेक्टर खुद भी देख सकता है, राइट? नाउ देयर आर फैसिलिटीज अवेलेबल कि इस कंपनी के प्रीवियस डायरेक्टर्स कौन थे. देखो आज अगर मैं रिलायंस का बात करूं ना, तो आई कैन सी जस्ट दोज डायरेक्टर्स हु आर प्रेजेंट राइट नाउ. ठीक है, मैं दिखाता हूं तुम लोग को. ये देखो, ऑल दिस थिंग्स लाइक निखिल रसिकलाल मेसवानी, ईतल रसिकलाल मेसवानी, मुकेश धीरूभाई अंबानी, they all are the current directors, right? These are the list of directors. Okay, अभी इनके पहले भी तो कोई आके गया होगा, तो वो सारी डिटेल्स भी तुम लोग निकाल सकते हो, बट वो सब चीजें अभी यहाँ पे नहीं देखनी अपने को. ओके, सी इफ यू सी, ये पहला डिन नंबर है, ये जो डिन पैन दिया हुआ है, पैन दिया है मतलब समझ जाना ये डायरेक्टर नहीं है. जैसे कि फॉर एग्जांपल श्रीकांत वेंकटाचारी का पैन दिया हुआ है, सेतुरामन कांडास्वामी का पैन दिया हुआ है, सावित्री पारेख का पैन दिया हुआ है, आलोक विनोद अग्रवाल का पैन दिया हुआ है. ये लोग कौन है पता है? कैन एनीबडी टेल मी वो हु आर दे? मैं ये नहीं पूछ रहा उनका डेजिग्नेशन क्या है, बट इफ यू नो हु आर दे, इन लोगों का पैन दिया हुआ है, मतलब ये लोग कौन है? एनी आइडिया? सोचो 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 कि व्हाई इन लोगों का पैन दिया गया है. स्मॉल, नहीं 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 भाई, सिंपल, दे आर द केएमपीज. क्या यार, याद करो याद करो याद करो, दे आर द केएमपीज. दे आर द केएमपीज. अभी मैं तुम लोग को ये भी बता देता हूं. I see, to be honest, I don't know Shrikant. Shrikant may be the managing director if I'm not wrong. Shrikant is the managing director. Sethuraman is the company secretary. Savitri Parekh is also the company secretary. And Alok Vinod Agarwal is the CFO of the company. जहां तक मुझे पता है ये CFO है. And Savitri Parekh, in Reliance has 2 company secretaries, by the way. Savitri Parekh is also a CS and Sethuraman Kandasamy is also CS. तो बचा ये श्रीकांत, he should be managing director और होल टाइम डायरेक्टर, कुछ भी. क्योंकि अगर तुम लोग को केएमपी का डेफिनेशन याद हो अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 51, तो 3 जन का होना जरूरी है. 3 जन का होना जरूरी है. एक सीएस तो होगा ही, सीएफओ भी होगा, एंड देयर इज अ लिस्ट. सीईओ होता है, होल टाइम डायरेक्टर होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, या तो मैनेजर होता है.
इन चार में से एक का होना भी जरूरी है। इसलिए मैं तुम लोग को स्टार्टिंग में बोला कि दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू चेक योर नॉलेज ऑफ कंपनीज एक्ट। एंड हाँ, ऐसा मत सोचना कि तुम लोग अभी प्रोफेशनल में आ गए हो तो कुछ भी कंपनीज एक्ट का रिलेट नहीं होगा। सी, देयर आर नो सच वर्ड्स, हम लोग ये पढ़ रहे, कोई वर्ड वगैरह नहीं है, बट सिंस यू आर इनटू प्रोफेशनल ना, ये सारी एक्स्ट्रा चीजें बहुत काउंट होगी। अभी देखो, एग्जीक्यूटिव में तुमने आंसर्स लिखे कॉन्सेप्चुअली, दैट इज ओके, वो भी करना है, बट अलोंग विद दिस इफ यू ट्राई टू ऐड सम एग्जांपल्स व्हिच आर नॉट अबाउट दिस चैप्टर, जैसे कि अभी मैंने तुम लोग को बताया, राइट, तो यू कैन ऐड दोस थिंग्स इफ यू हैव। हाँ, बट एक चीज याद रखना, पेपर 3 घंटे का भी है। हाँ, तुम लोग एग्जाम्पल के चक्कर में आधा पेपर भरे, वैसा मत करना। 3 घंटे में पेपर भी खत्म होना चाहिए। मेक श्योर यू रिमेंबर दैट। So always relate whenever you write the answer of this professional exam, some or the other extra things is very much useful. Conceptually तो हम लोग ने एग्जीक्यूटिव में लिख लिया, अभी थोड़ा एक स्टेप आगे जाना है। इन एग्जीक्यूटिव प्रोविजन ये, फॉलोइंग सेक्शन ये वो, गिवन, कंक्लूजन सब कर दिया हमने, बट यहाँ पे थोड़ा आगे जाना है बस, और कुछ नहीं। बाय शेयर होल्डर, लेट अस सी द थर्ड पॉइंट, बाय शेयर होल्डर। शेयर होल्डर एज एन इन्वेस्टर, अभी वो भी क्या करेगा, शेयर होल्डर्स में ऑल्सो डिमांड सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट। क्यों? टू नो द स्टेटस ऑफ द कंपनी। अभी व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटस? देखो, स्टेटस को अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो ना, तो देर आर वेरियस स्टेटस, क्योंकि अभी सिंस दिस वर्ड इज नाउ एक्टिंग एज अ साइलेंट रोल, मैं खुद एक परफेक्ट मीनिंग नहीं बता पाऊंगा कि कौन सा स्टेटस। लाइक देयर इज अ स्टेटस ऑफ वेदर कंपनी इज एक्टिव कंपनी, और वेदर कंपनी इज डोरमेंट कंपनी, वेदर कंपनी इज अमालगमेटेड कंपनी, वेदर कंपनी इज मर्ज्ड कंपनी। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें मुझे पता चलेगा सर्च एंड स्टेटस के रिपोर्ट से। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल ये दो, वापस रिलायंस ही खोलते हैं हम लोग। इफ यू सी, रिलायंस का स्टेटस है ना, एक्टिव होगा। मैं तुम्हें दिखाता हूं, सी दिख रहा है, कंपनी स्टेटस एक्टिव, देखो ये रहा कंपनी स्टेटस एक्टिव। तो ये सारी चीजें अभी बेचारे गरीब शेयर होल्डर को शायद ना पता हो एमसीए कैसे ऑपरेट करने का है, राइट, तो वो शायद ऐसा सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट निकालेगा। टू नो द स्टेटस ऑफ द शेयर्स हेल्ड इन द कंपनी, दैट इज how many shares they are holding, on which date their shares were transferred, and from whom they were transferred. To know the directors and to know the complete history as per ROC. Okay, ROC में क्या क्या फाइलिंग हुआ है। देखो, टू बी ऑनेस्ट, शेयर होल्डर को इतना नॉलेज नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल ही इज अ ह्यूज इन्वेस्टर। मैं तो ठीक है, मुझे तो पता होगा, बट फॉर एग्जांपल यू कंसिडर योर पेरेंट्स, इफ दे आर इन्वेस्टिंग, वो लोग कंपनी का क्या देखेंगे? मैं बोलूं, कंपनी का सबसे पहले तो नाम देखेंगे, भाई कंपनी क्या है। सेकंड थिंग, they will see the objects of the company, कि कंपनी का बिजनेस क्या है। and the third thing what they will see is the liability, भले ही ये नहीं लिखा है यहाँ पे, the third thing what they will see will be the liability of the company। क्यों पता है क्या? there is a type of liability in the company। अगर unlimited liability निकला, तुम मुझे बोलो इन्वेस्ट करने के बारे में सोचोगे क्या? if the company is unlimited liability company, will you think of investing in that company? बोलो, नहीं ना। तो सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट शेयर अपने को सिलेबस में दिया इसलिए पढ़ना है, बट प्रैक्टिकली बोलूं तो शेयर होल्डर को सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। उसको किस चीज की जरूरत है? एक तो उसका नाम, उसका मतलब कंपनी का नाम, कंपनी का ऑब्जेक्ट्स एंड कंपनी का लायबिलिटी। तो ये तीनों चीज उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से पता चल जाएगा। ठीक है, ऑल दिस थ्री थिंग्स ही कैन फाइंड आउट थ्रू मेमोरेंडम। एंड अभी एक चीज सोचो ना, कंपनी नया होता, सोचो लॉजिकली सोचो, तो सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट कहां से बना था? पॉसिबल है क्या? कंपनी बस न्यूली इनकॉर्पोरेटेड, 1 महीना हुआ कंपनी को, राइट, और इसमें पैसा लगाना है, तो इज इट पॉसिबल सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट का कोई मतलब बनने वाला है? नहीं। दैट इज व्हाई आई सेड शेयर होल्डर्स के लिए इतना यूजफुल नहीं है, भले ही सिलेबस में दिया है, अपने को पढ़ने का है, बट नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट अथॉरिटीज। तो ये इनकम टैक्स, आरबीआई, सेबी, वो लोग भी सर्च एंड स्टेटस मांग सकते हैं। कब पता है क्या? अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो रहा है तो, क्योंकि नॉर्मली देखो, क्या कोई गवर्नमेंट इनकम टैक्स वगैरह कोई पैसा वैसा तो देने नहीं वाला कंपनी को, लेकिन अगर कुछ इन्वेस्टिगेशंस जैसे कि हो रही है, तो इन दैट केस सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट कैन बी प्रिपेयर्ड। एंड लास्ट इज कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, इनको भी सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। चलो लेट मी आस्क यू, तुम कस्टमर हो, मैं कंपनी हूं, तुम कस्टमर हो, मैं कंपनी हूं, तुम लोग को सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। तुमको किस चीज की जरूरत है? कैन यू टेल मी व्हाट डू यू नीड द मोस्ट, व्हाट डू यू वांट टू चेक द मोस्ट? Can you tell me what is that thing which you will check the most? गुडविल। कौशल कंपनी नया कंपनी है, बोल नो गुडविल। पेमेंट डिफॉल्ट,
यशपाल कंपनी नया कंपनी है, प्रोडक्ट एंड प्राइस नो श्रुति, पेमेंट में डिफॉल्ट अब तक कोई डिफॉल्ट नहीं है, फिर भी नो 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 नो। चलो मैं ही बता देता हूं, तुम कस्टमर हो ना, कंपनी के साथ डील करना है ना, तुम लोग एक ही चीज देखोगे, ऑब्जेक्ट क्लॉज। पता है क्यों? पता है? तुमने अल्ट्रा वायरस नाम का चीज कुछ सुना है क्या? आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, बट अल्ट्रा वायरस नाम का चीज सुना है ना? याद आया अभी? थोड़ा बहुत रिलेट करो तो लिंक मिल गया होगा तुम लोग को। कैन कंपनी डू सच ट्रांजेक्शन बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट्स? बोलो मुझे, क्या कंपनी बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट जाके काम कर सकता है? नहीं। अगर तुम सप्लायर हो और मैं कंपनी हूं, मुझे पता है कि ये मैं नहीं कर सकता, लाइक फॉर एग्जांपल आई कैन नॉट सेल दिस सैनिटाइजर, आई कैन नॉट सेल दिस सैनिटाइजर, ठीक है? तो तुम लोग ने अगर ये सैनिटाइजर खरीद लिया, ठीक है, एंड बाद में तुमको पता चलता है कि अरे ये तो प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकता, तो ये ट्रांजैक्शन क्या होगा? विच इज दिस ट्रांजैक्शन? दिस ट्रांजैक्शन इज अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन। क्या तुम लोग मेरे पे केस कर सकते हो? बोलो, इफ द ट्रांजैक्शन इज अल्ट्रा वायरस कैन यू फाइल अ सूट ऑन मी? नहीं। क्या करोगे सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट का? बोलो, क्या कुछ काम में आया सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट? नहीं ना, बस बुक में दिया है इसलिए पढ़ने का है। तो ऑलवेज रिमेंबर, कुछ चीजें ना फैक्चुअल होती है, कुछ चीजें प्रैक्टिकल होती है, बट फिर भी बिफोर एंटरिंग इनटू एनी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, द सप्लायर्स और कस्टमर्स मस्ट गेट द सर्च रिपोर्ट प्रिपेयर। ठीक है, तेरे को खर्चा करने का है कर, लेकिन अगर कंपनी नया है तो क्या सर्च करेगा और क्या स्टेटस निकालेगा, ये भी तो सोच। राइट? क्लियर? चलो, वेरी गुड। तो नाउ द मेन कॉन्सेप्ट जिसका मैं भी इंतजार कर रहा था कभी आएगा, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। ओके, खाली ध्यान देना, अभी इसमें थियरी का कोई अपने को गरज नहीं है, ठीक है? अभी अपना बहुत ही पुराना टेक्निक यूज करेंगे अपना हाथों का। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, अभी सबसे पहला चीज क्या है पता है क्या? व्हेनेवर द चार्ज इज क्रिएटेड इट मस्ट बी रजिस्टर्ड। ठीक है, कितने दिन में रजिस्टर करना होता है ये तुम लोग मुझे एक फिक्स डे नहीं बोल सकते हो। क्यों पता है? पहले है ना, पहले चार्ज रजिस्टर करने के लिए टाइम पहले, मतलब पहले इन द सेंस बिफोर 1 or 2 years, बिफोर 1 or 2 years इट वाज लाइक कि अगर तुम चार्ज क्रिएट करते हो ना तो 300 दिन में रजिस्टर करो। इट वाज 300 डेज पहले, बट बीच में ना अमेंडमेंट आया, राइट? द ग्रेट निर्मला सीतारमन अमेंडेड द लॉ एंड उसने छेड़खानी किया सेक्शन 77 के साथ। ओके, नाउ वो छेड़खानी किया ना तो इसमें थोड़ा डिस्प्यूट हुआ कि व्हाट इफ पुराने वाले लोगों ने अभी भी 300 डेज का वेट किया हो। पॉसिबल है कि नहीं? मान के चलो कि दिस इज द सेंटर लाइन जिधर निर्मला सीतारमन ने बोला नाउ अमेंडेड, तो अभी इधर जस्ट 2 महीने पहले किसी ने चार्ज रजिस्टर किया, जस्ट 2 months बिफोर दिस अमेंडमेंट। तुम लोग सोच के बोलो, क्या वो 300 दिन का वेट कर रहा होगा? पॉसिबल है क्या वो 300 दिन का वेट कर रहा होगा? क्या चलना 300 दिन है ना, रजिस्टर कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, घाई क्यों करने का, है ना? एंड सडनली बीच में से थप्पा मार के बोला कि चलो सरप्राइज, अच्छा लगेगा तुमको एज अ कंपनी? तुम लोग को अच्छा लगेगा नहीं ना। तो इसीलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, राइट? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक तो वो 300 डेज वाला है और दूसरा अभी जो नया रूल आ गया ना उसमें सीधा सीधा बोल दिया विद इन 60 डेज। तो ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलेगी। मैटर क्या करता है पता है? द डेट ऑफ क्रिएशन, चार्ज का डेट ऑफ क्रिएशन मैटर करता है। तो इसको ध्यान से पूरा समझना। एग्जीक्यूटिव में किया है तुम लोग ने, इसका फिर से रिवीजन होगा। नहीं याद है कोई प्रॉब्लम नहीं, याद है तो तुम लोग के लिए रिवीजन है बस, दैट्स इट। नाउ सबसे पहला थंब रूल क्या बोलता है पता है? कि व्हेनेवर द चार्ज इज क्रिएटेड इट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद इन 30 days ऑफ क्रिएशन। ये कॉमन रूल है, ठीक है? ये पहले भी था अभी भी है। तो 30 दिन में रजिस्टर होना चाहिए।
कैसे रजिस्टर करेंगे? तो वी नीड टू फाइल फॉर्म्स। फॉर्म कौन सा है? एक जगह पे आता है CHG1, दूसरी जगह पे आता है CHG9। 9 कभी आता है? 9 इन केस ऑफ डिबेंचर्स। तुम लोग ने सिक्योर्ड डिबेंचर्स का नाम सुना है? हाँ भाई, यू नो सिक्योर्ड डिबेंचर्स सुना ही होगा। ऑफ कोर्स, मैं भी कैसा सवाल कर रहा हूं। सिक्योर्ड डिबेंचर में क्या सिक्योरिटी दिया जाता है? लेंडर को। आया ना? लेंडर मतलब इन्वेस्टर हो गया ना, डिबेंचर की बात कर रहे तो इन्वेस्टर हो गया, उसको सिक्योरिटी दिया गया है। क्या इस सिक्योरिटी के ऊपर चार्ज रजिस्टर होना चाहिए? यस। तो वो चार्ज रजिस्टर करेंगे CHG9 भर के। कौन भरेगा? कंपनी। ठीक है, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड, यहां पे लिख देता हूं मैं, बाय कंपनी विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन इन। तो दो फॉर्म है, एक CHG1, एक CHG9। 1 में कब आएगा? सपोज नॉर्मल लोन लिया, नॉर्मल लोन बैंक से, तो 1 आएगा कि 9 आएगा? सोचो सोचो सोचो। कंपनी ने बैंक से लोन लिया, बदले में सिक्योरिटी दिया, तो 1 करूंगा कि 9 करूंगा मैं? इट विल बी 1। तो इन केस ऑफ अदर लोन्स, ओके, इन केस ऑफ अदर लोन्स, राइट? इतना क्लियर हुआ? ये कॉमन रूल है। अभी तक अमेंडमेंट का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं अपने को, अभी अमेंडमेंट आने वाला है। तो देखो, सबसे पहले चार्ज क्रिएट हुआ, जो भी दिन पे, उसके 30 दिन में आरओसी में फाइलिंग हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तक आरओसी में फाइलिंग नहीं होगा ना, तब तक इधर कुछ दिखेगा नहीं। ये जो दिख रहा है ना, ये जो सब कुछ, ये कब हुआ पता है? जब ये आरओसी में फाइल हुआ। अगर आरओसी में फाइल नहीं होता ना, तो वो इंफॉर्मेशन इस टेबल में नहीं दिखता, राइट? नाउ CHG1 या CHG9 हो गया। नाउ हियर कम्स द अमेंडमेंट। अगर तुमने 30 दिन में रजिस्टर नहीं किया तो क्या कोई पहाड़ टूटेगा? नहीं, अपने को सेक्शन 77 फॉलो करना है। इफ नॉट रजिस्टर्ड इन 30 डेज। अभी जस्ट नाउ, थोड़ी देर पहले मैंने वो एग्जांपल दिया ना, कि तुम लोग ने हाँ भी बोला कि इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि कुछ लोग 300 दिन का वेट कर रहे हो? आया ना? पॉसिबिलिटी था कि नहीं था? कि कुछ लोग अभी भी अजम्पशन में थे ना कि भाई 300 दिन तो हुए नहीं है, चलना थोड़ा लेट फी भर के कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है, पैसों की कमी नहीं है। तो देवर अंडर एन अजम्पशन के 300 दिन में करना है। सडनली बीच में अमेंडमेंट आ गया, तो क्या उनसे वो 300 दिन का राइट हट जाना चाहिए कि रहना चाहिए? शुड दे बी गिवन द प्रोविजन ऑफ 300 डेज, यस और नो? उनके साथ बोले ना अनफेयर कुछ ना हो, तो क्या उनको वो 300 दिन अभी भी देना चाहिए, इवन इफ द लॉ इज अमेंडेड? आया ना? देना चाहिए ना? यस, देना चाहिए। तो देखो, कभी इफ नॉट रजिस्टर्ड इन 300 डेज, तो if charge created before 2nd November 2018, तो रजिस्टर चार्ज विद इन 300 डेज। देखो, दे दिया, उनका हक दे दिया हम लोग ने। 300 डेज ऑफ अरे यार सॉरी, 300 डेज ऑफ क्रिएशन, बराबर? क्या ये प्रोविजन से साफ साफ दिखता है कि उन लोग के राइट को प्रोटेक्ट किया निर्मला सीतारमन ने? आया ना? ये प्रोविजन पढ़ के अपने को समझ में आता ना कि भाई देख, अमेंडमेंट कभी से एप्लीकेबल हुआ? 2 नवंबर 2018 से। अभी इसका भी मैं तुम लोग को हिस्ट्री बोलूंगा। अगर तुम लोग तुम्हारा मॉड्यूल देखोगे ना, तो शायद तुमको 2019 दिखेगा, बराबर? अगर तुम लोग मॉड्यूल देखोगे ना, तो कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 दिखेगा। मैं पहले ही कुछ क्लेरिफिकेशन दे देता हूं। तुम बोलोगे सर मॉड्यूल में 2019 दिया है, आपने 2018 लिखा, मतलब आप रॉन्ग हो। नहीं, इस 2019 के अमेंडमेंट को रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल किया गया है। अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 है ये, जहां पे ये चेंज एप्लीकेबल हो गया। लेकिन ये जो इसका झगड़ा है ना, 2018 से चल रहा था। इसका ये जो झगड़ा है चार्ज का, ये जो सेक्शन 77 में छेड़खानी करने का झगड़ा जो चल रहा था ना, वो 2018 से चल रहा था।
2018 से लेके 19 तक चला। 31 जुलाई 2019 को कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया। 31 जुलाई 2019 को कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 आ गया एंड उसमें सेक्शन 77 को एक्चुअल में अल्टर किया एंड उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया। मतलब कि जब से झगड़ा चालू हुआ था ना तब से चालू कर दो ये नया प्रोविजन। ऐसा नहीं है कि 2019 से। सो इवन इफ यू सी कि तुमको 2019 दिखता है तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये रेट्रोस्पेक्टिवली लिया गया है, राइट। तो चलो, पुराने वालों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया, लेकिन अगर 2 नवंबर या 2 नवंबर के बाद बना है चार्ज तो कोई 300 दिन का पॉइंट नहीं मिलेगा, 60 दिन के अंदर रजिस्टर करो, ठीक है। नो 300 डेज, क्योंकि भाई तू थोड़ी 300 दिन का वेट कर रहा था। सोचो, सपोज अगर मैंने चार्ज रजिस्टर किया है 15 नवंबर 2018 को, चार्ज रजिस्टर किया है 15 नवंबर 2018 को, तो क्या मैं 300 दिन का वेट कर रहा हूं? सोचो, नहीं ना। एम आई वेटिंग फॉर दैट 300 डेज? नहीं, क्योंकि मुझे तो क्या करना है, 60 डेज में रजिस्टर करना है। ये तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा है क्या कि सर अभी अभी आपने बोला कि ये तो 2019 में पब्लिश हुआ, राइट। 2018 से तो झगड़ा चल रहा था, पब्लिश 2019 में हुआ, तो जो बंदे ने 15 नवंबर को चार्ज क्रिएट किया हो उसको कैसे पता चलेगा कि 2019 में चेंज होने वाला है? समझा क्या मेरा क्वेश्चन? 2018 में 15 नवंबर मतलब 2 नवंबर जा चुका है, राइट। लेकिन लॉन्च, ये जो एक्ट है वो लॉन्च हुआ 2019 में, लॉन्च मतलब पब्लिश। तो उसको कैसे पता चलेगा कि यार 2019 में ऐसा कुछ हरकत होने वाला है? तो उसका आंसर भी मैं तुम्हें दूंगा। ये जो एक्ट है ना, एक्ट जो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, वो 2 बार रिपील हुआ। रिपील समझ में आता है? कैंसल हुआ। कैंसल कब हुआ? पहले नवंबर 2018 में 2 नवंबर को पहला डिसीजन लिया गया कि चेंज करने का है। दैट वाज फर्स्ट ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस बोला गया उसको, नॉट द एक्ट, ऑर्डिनेंस। वो ऑर्डिनेंस को दोबारा चेंज किया गया, सेकेंड ऑर्डिनेंस। अभी तक एक्ट नहीं बना। फर्स्ट ऑर्डिनेंस आया नवंबर में, देन उसके बाद सेकेंड ऑर्डिनेंस आया, देन थर्ड ऑर्डिनेंस नहीं आया, थर्ड टाइम सीधा एक्ट हो गया। मतलब डोंट यू थिंक ऑर्डिनेंस वाज पास्ड, मतलब गवर्नमेंट के साइड से नोटिफिकेशन जा चुका है कि 2 नवंबर से जो भी चार्ज क्रिएट हुआ है ना उसको 60 दिन ही मिलने वाला है। ये चीज का झगड़ा चल रहा है वो बात अलग है, लेकिन अगर तेरा 2 नवंबर से है ना तो खाली तुझे 60 दिन दिया गया। इसीलिए रेट्रोस्पेक्टिवली ये लोग डाल सके। वरना तुम लोग सोचो ना कि अगर 31 जुलाई 2019 को एक्ट आया, क्या ये लोग 2 नवंबर डेट डाल सकते थे अगर ये ऑर्डिनेंस नहीं होता? तो अगर ऑर्डिनेंस नहीं होता तो क्या ये 2 नवंबर का डेट डाल सकते थे? इन लोग का एबिलिटी है इतना? नहीं है, नहीं डाल सकते थे। सिंस इट वाज इन्फॉर्म्ड थ्रू ऑर्डिनेंस, अगर तुम लोग को सर्च करना है तो कर लेना, नहीं करोगे तो भी कोई जरूरत नहीं है। सिंस ऑर्डिनेंस पास हुए थे, एक्ट पास नहीं हुआ था, तो ऑर्डिनेंस में 2 नवंबर को स्ट्रेट अवे सेक्शन 77 को चेंज कर दिया था। नो डाउट देयर वाज अ डिस्कशन एंड ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, पास नहीं हुआ बाद में ये वो, लेकिन फाइनली कंपनीज एक्ट 2019 में ये जो भी सेक्शन 77 के चेंजेस थे ना वो एप्लीकेबल हो गए विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो अपना जो सेकंड पॉइंट है ना वो क्या बनेगा? ओके, देन लालची नहीं बनने का, रजिस्टर चार्ज विद इन, टच स्क्रीन में लोचा है, सिक्सटी डेज ऑफ क्रिएशन। मतलब तुम लोग क्या मुझे बोल सकते हो एक्स्ट्रा टाइम कितना दिया? एक्स्ट्रा टाइम, एडिशनल टाइम देखो, चलो लेट टेल मी इन द चार्ज रजिस्टर बिफोर 2 नवंबर 2018, बिफोर एक्स्ट्रा टाइम कितने दिन का दिया है? एक्स्ट्रा टाइम 2 नवंबर 2018 के पहले एक्स्ट्रा टाइम कितना है? 270 डेज। देखो पहले क्या बोला, 30 दिन में रजिस्टर करना है फ्रॉम द क्रिएशन। ध्यान दो ध्यान दो, 30 दिन में फ्रॉम क्रिएशन रजिस्टर करना है। 30 दिन में नहीं किया ना तो तेरे को लॉ बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर 30 दिन में नहीं किया ना चल 300 दिन में कर। 300 दिन कब से देखना, क्रिएट, तो बीच में खाचा कितने दिन का बचा? 270 डेज का। तो दैट इज एडिशनल 270 डेज आर गिवन।
पहले बुक के ऊपर ध्यान मत दे, ठीक है। एंड द सेकेंड वन में कितने दिन एक्स्ट्रा मिले? 30 डेज, राइट। 30 दिन, भले ही 60 दिन लिखा है लेकिन दिमाग लगाओ एक्स्ट्रा दिन कितना मिला? खाली 30, क्योंकि 60 डेज भी क्या बोला है? 60 डेज फ्रॉम क्रिएशन। जिस दिन तेरा चार्ज क्रिएट हुआ ना उसके 60 दिन में या तो CHG 1 भर दे या तो 9 भर दे, क्योंकि डिपेंड्स अपॉन द ट्रांजैक्शन कि 1 भरना है कि 9 भरना है, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन द ट्रांजैक्शन कि 1 भरना है कि 9 भरना है, ठीक है। नाउ चलो, इतना क्लियर हुआ? आर यू क्लियर विद दिस पार्ट जो तुम लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है? कोई डाउट इन दिस तो आस्क मी, क्योंकि इसके आगे बढ़ना है मुझे, अभी भी खत्म नहीं हुआ। सर ये 300 डेज फ्रॉम 2 नवंबर क्यों? हाँ हर्ष देख, क्वेश्चन में अगर डेट दे दिया तो क्या करेगा? क्वेश्चन में अगर बोला द चार्ज वाज क्रिएटेड ऑन सो एंड सो डेट, देन व्हाट यू विल डू, बता। एंड दूसरा चीज हर्ष, अगर तू 300 दिन में भी फाइल नहीं करता तो सीजी को अप्लाई करना पड़ता है। मैं आगे का बात अभी बता रहा हूं। और एक्स्ट्रा टाइम चाहिए ना, मतलब जो भी उसका एक्स्ट्रा टाइम सपोज खत्म हो गया तो उसके बाद सीजी का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। तो सीजी के पास जाने के लिए बोलना पड़ेगा ना कि भाई अपने को 300 दिन दिया था, नहीं किया, ये रीजन था, राइट। इसलिए डेट जरूरी है, क्योंकि देख डिले तो कितना भी हो सकता है ना। यस वेरी गुड काजल, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले दैट इज सेक्शन 87, जो भी पूरा का पूरा अमेंड हो चुका है। सर इन केस 30 डेज में कर दिया रजिस्टर तो फिर नीचे का नहीं है, नो नीड। अगर 30 दिन में कर दिया तो ये जो सेकंड पार्ट है ना वो भूल जाओ, ठीक है। स्क्रीनशॉट आफ्टर वी फिनिश दिस होल कॉन्सेप्ट, मैं एक बार पूरा स्क्रीन रोल करूंगा तभी स्क्रीनशॉट ले लेना, डोंट पैनिक इन बिटवीन। स्क्रीनशॉट एट द एंड, अभी भी खत्म नहीं हुआ है ना, तो पूरा एक बार समझ लो, बाद में आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, डोंट वरी। चलो नाउ, चलो लेट अस अज्यूम कि तुम 300 दिन वाले हो, ठीक है। फोकस नाउ, फोकस। लेट अस अज्यूम कि तुम 300 दिन वाले हो। 300 दिन में तो क्या कर लोगे? कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, और एक बार एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। तो थर्ड पार्ट इसका ऐसा आएगा, इफ नॉट रजिस्टर्ड इन 300 डेज। हो सकता है कुछ आलसी होते हैं मेरे जैसे जो 300 दिन में भी ना करे, कोई बात नहीं, लॉ ने और एक बार बोला चल लेके जा एक्स्ट्रा टाइम। कितना? ये क्या हो गया? विद इन 6 मंथ्स, ये ना बहुत ही बड़ा पेतरा है। ये तो मेरे को आज तक समझ में नहीं आया निर्मला सीतारमन ने क्या सोच के ये कंडीशन डाला है। तुम लोग को भी लगेगा, अगर तुम्हारा दिमाग मेरे जैसा चलेगा ना तो तुम लोग को भी समझ में आएगा कि ये क्या कंडीशन डाला है। 6 मंथ्स फ्रॉम 2 नवंबर 2018। अभी ये क्यों, ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, राइट। देखो नॉर्मली कितना दिन दिया? 300 दिन। फर्स्ट एक्सटेंशन कितना दिन का मिला? 300 दिन का मिला। सेकेंड एक्सटेंशन कितने दिन का दिया, सॉरी कितने मंथ्स का दिया? 6 महीना, लेकिन नॉट आफ्टर 300 डेज, फ्रॉम 2 नवंबर 2018। अभी तुम लोग सोचो कि अगर, थोड़ा मैथ्स मेरा वीक है बट लेट अस अज्यूम के चार्ज इज क्रिएटेड ऑन फर्स्ट जनवरी, नहीं सॉरी फर्स्ट जनवरी नहीं, फर्स्ट नवंबर के बाद क्या आता है? दिसंबर। हाँ, 1 दिसंबर 2018 को चार्ज, अरे नहीं सॉरी, नवंबर के पहले क्या आता है? अक्टूबर। यस, 1 अक्टूबर 2018 को, ठीक है। डेट ऑफ क्रिएशन में यहां पे लिखता हूं, यस 1 अक्टूबर 2018। नाउ फर्स्ट, सबसे पहले कितने दिन में रजिस्टर करना है? चलो बी अटेंटिव। द फर्स्ट थिंग, कितने दिन में रजिस्टर करना है? फर्स्ट पॉइंट, कितने दिन में करना है? अरे नहीं बाबा, फर्स्ट प्रेक्षा इट इज 30 डेज। 300 कहां से आया? फर्स्ट 30 दिन में करना है। 30 दिन में नहीं हुआ, कितने दिन में करना है? तो 300 में करोगे ना, बराबर। अगर 30 में नहीं हुआ तो 300 में करोगे। चलो बी, लेट अस बी स्पेसिफिक। 1 अक्टूबर से अगर 300 दिन गिनना है, रफली हाउ मेनी मंथ्स? रफली, फेब्रुआरी में 28 होता है, ये वो बीच में मत घुसना। रफली हाउ मेनी मंथ्स? अगर मैं 300 डेज बोलता हूं तो रफली इट इज हाउ मेनी मंथ्स? 10 मंथ्स ना। चलो
अक्टूबर से 1 अक्टूबर से 10 महीना खत्म किधर होगा? पक्का अगस्त ना, मेरे को नहीं आता इसलिए मैं तुम लोग के ऊपर डाल रहा हूं। एंड्स ऑन 31 अगस्त, ठीक है, अज्यूमिंग 31 अगस्त 2019। मतलब ये दिन तक रजिस्टर करना है कि नहीं करना है? जुलाई हो रहा है भाई, तुम लोग पहले नक्की कर लो, मैं ही करता हूं, छोड़ो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई होता है रे। क्या तुम लोग गिन रहे हो? मेरे से भी गया गुजरा मैथ्स किसका है यहाँ पे? कौन कौन है? ये पी कौन है? पी 31 जुलाई, ओके। 31 जुलाई, क्या मैं 31 जुलाई के बाद रजिस्टर कर सकता हूं? क्या मैं 31 जुलाई के बाद रजिस्टर कर सकता हूं? सोचो, ये रहा तुम्हारे सामने प्रोविजन रखा है मैंने कि इफ नॉट रजिस्टर्ड विद इन 300 डेज, क्या 31 जुलाई के बाद मैं रजिस्टर कर सकता हूं? द आंसर इज नो, नहीं कर सकता। इसलिए तो मेरे को हंसी आता है ये ऐप के ऊपर क्या, प्रोविजन के ऊपर। ये 6 महीना कुछ काम का ही नहीं है ऐसे सिचुएशन में, समझे कि नहीं तुम लोग? सोचो, 6 मंथ से, सॉरी, 2 नवंबर से 6 महीना खत्म की तरह, चलो नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, और फर्स्ट में को क्या 6 महीना खत्म हो जाएगा? अगर 1 मई 2019 को 6 महीना खत्म हुआ कि नहीं? ये 300 दिन में ही 6 महीना आ गया, मतलब वो बेचारे को सेकंड एक्सटेंशन मिला ही नहीं। समझ में आया तुम लोग को? हाँ, इसलिए तो मैं बोला कि ये मुझे समझ में ही नहीं आता कि क्या सोच के अपने निर्मला सीतारमन जी ने इसको अंदर इनपुट किया हुआ है। बट कांट से, अभी फाइनेंस मिनिस्टर है तो क्या झगड़ा करने का। मैं गरीब आदमी, मेरा आवाज भी कोई नहीं सुनेगा। बट देखो ना, तुम्हारे सामने है कि हाँ, अगर ये चार्ज सपोज 1 जनवरी को रजिस्टर हुआ होता, लेट अस से 1 जनवरी को, तो क्या ये 6 महीना यूजफुल होता? अगर 1 जनवरी 2018 को चार्ज क्रिएट हुआ है तो होता, क्योंकि देखो 1 जनवरी से 10 महीना खत्म होता था 30 अक्टूबर, सॉरी हाँ 30 अक्टूबर पे, राइट। तो उसके बाद नहीं किया, कोई बात नहीं, 2 नवंबर से 6 महीने में फिर से कर दो। तो कुछ कुछ जगह पे वैलिड है, बट ऐसे सिचुएशन में जो तुम लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वहां पे तो इनवैलिड हो जाएगा, राइट। बट अपने को बुक में दिया है तो पढ़ना है, कांट हैव एनी ऑप्शन। तो इफ नॉट रजिस्टर्ड इन 300 डेज, रजिस्टर अ चार्ज विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम 2 नवंबर विच एंड्स ऑन, जो भी डेट है अपना मई महीने में एंड हो जाएगा, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, और फर्स्ट मई को 6 महीना खत्म हो जाएगा, राइट। समझा तुम लोग को ये लेफ्ट साइड वाला? अभी इधर मैं लिखूंगा राइट साइड में सेकंड पार्ट, इफ नॉट रजिस्टर्ड इन हाउ मेनी डेज। भाई देखो, सबसे पहले चार्ज रजिस्टर हुआ, लेट अस सी द राइट पार्ट नाउ, राइट साइड का, विच इज ऑन और आफ्टर 2 नवंबर। अगर चार्ज रजिस्टर हुआ है कितने दिन में करना है? 30 दिन में। 30 दिन में नहीं किया तो कितने दिन में करना है? इफ नॉट रजिस्टर्ड विद इन 60 डेज ऑफ क्रिएशन। तो इधर एक्स्ट्रा टाइम ईमानदारी से दिया, देखो इधर कोई प्रॉब्लम नहीं, रजिस्टर चार्ज विद इन नेक्स्ट 60 डेज लिख देते हम लोग, इजी पड़ेगा। नेक्स्ट 60 डेज आफ्टर द expiry of above 60 days, right? Very much simple to understand। मतलब इधर देखो कोई झंझट मारी है नहीं, चल 60 दिन में नहीं किया ना, और 60 दिन दिया तेरे को, हमने एक बार 60 दिन दिया था तो नहीं किया, कोई बात नहीं, और एक बार 60 डेज लेके जा, सिंपल। एवरीवन गॉट दिस? यहाँ पे ये सेक्शन होता है खत्म, मतलब रजिस्ट्रेशन का पार्ट होता है खत्म। देखो फिर से एक बार, चार्ज रजिस्टर करना है 30 डेज में, या तो 1 लो या तो 9 लो, बराबर। सेकंड, अगर 30 दिन में नहीं किया तो 2 कंडीशन है। डेट देखो चार्ज का, क्या 2 नवंबर के पहले का है? तो पहले का है तो भाई तेरे को पुराने एक्ट के हिसाब से 300 दिन दिया, और अगर तूने 300 दिन में नहीं किया कोई बात नहीं,
300 दिन के बाद, सॉरी 300 दिन में नहीं किया तो 6 महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है, लेकिन आफ्टर 300 डेज नहीं, कभी मिल रहा है? आफ्टर 2 नवंबर, दैट इज फ्रॉम 2 नवंबर, राइट? एंड अगर तू, तेरा चार्ज ऑन और आफ्टर 2 नवंबर है, दैट इज ऑन और आफ्टर 2 नवंबर 2018 है, तो गपचुप 60 दिन में रजिस्टर कर। और अगर 60 दिन में नहीं किया तो और एक बार 60 दिन लेके जा, ठीक है? और एक बार 60 डेज दिया, राइट? अभी एक पॉइंट खाली मुझे ऐड करना है, विथ एडिशनल फीस। देखो भाई, गवर्नमेंट फ्री में काम नहीं करेगा। विथ एड वैलोरेम फीस। अभी ये एडिशनल फीस तो चलो अपने को समझ में आता है, कुछ एक्स्ट्रा लगेगा, राइट? फॉर एग्जांपल 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स जो भी है, एडिशनल फीस लग गया। ये एड वैलोरेम फीस क्या होता है पता है? फीस कनेक्टेड विद द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है? मतलब परसेंटेज में फीस होता है। स्टैंप ड्यूटी पता है तुम लोगों को? क्या स्टैंप ड्यूटी फिक्स अमाउंट है 1,00,000 रुपया, हर एक घर का 1,00,000 रुपया, ऐसा है क्या स्टैंप ड्यूटी? नहीं ना, इट इज इन परसेंटेज। 1 करोड़ का घर है तो परसेंटेज के हिसाब से भर, जो परसेंटेज परसेंटेज फिक्स है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को एड वैलोरेम फीस बोला जाता है, ठीक है? एडिशनल फीस देख, फर्स्ट 60 डेज में करेगा, देख 30 दिन में नो एडिशनल फीस। ये जो 30 डेज है ना, 30 डेज में कोई एडिशनल फीस नहीं है, 400 से 600 रुपया लगता है चार्ज रजिस्टर करने का, राइट? डिपेंड्स अपॉन द ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल ज्यादा है तो थोड़ा फीस ज्यादा होता है, ऑथराइज कैपिटल कम है तो फीस कम होता है। देन अगर वो फर्स्ट 30 में नहीं किया ना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट 30 ले, एडिशनल फीस नेक्स्ट 30 में बोल रहा हूं, मतलब 60 डेज फ्रॉम द क्रिएशन विद एडिशनल फीस, थोड़ा डबल टाइम या 3 टाइम्स भर दे, जो भी लॉ में लिखा है। एंड और अगर वो 60 में भी नहीं किया तो और एक बार 60 डेज देंगे हम लोग, लेकिन अभी एडिशनल फीस तो लगेगा ही, साथ में एड वैलोरेम लगाएंगे। एड वैलोरेम मतलब क्या? जितना तेरा ट्रांजैक्शन, उसके परसेंटेज के हिसाब से फीस वसूल करेंगे, राइट? क्लियर सब लोग को? एनी डाउट? अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। इधर एक वर्ड लिख देना, ऑल्सो फॉर मॉडिफिकेशन, बाद में लो, रुको, क्योंकि मॉडिफिकेशन भी हुआ ना तो भी सेम फॉलो करना है, क्योंकि मॉडिफिकेशन के केस में भी 77 एप्लीकेबल होता है। तो जस्ट फॉर योर नॉलेज, ऑल्सो फॉर मॉडिफिकेशन सेम विल अप्लाई, सेक्शन 77। दिस इज द फर्स्ट पेज, राइट? फर्स्ट पार्ट सेक्शन 77 का। देन दिस इज द सेकेंड वन, इफ नॉट रजिस्टर्ड विद इन 30 डेज। ये तुम लोग के बुक में वन बिलो दी अदर लिख देना, ठीक है? पूरा एक साथ है, बट अभी स्क्रीन के ऊपर तो इतना सारा आएगा नहीं ना, with additional fees, okay? And the last one with ad valorem fees, रुको थोड़ा छोटा करता हूं, yes, with ad valorem fees, done? Now what I want you to do is, just I give you 2 minutes, ये जो तुम लोग के पास, सॉरी बुक नहीं है ना, जाने दो, छोड़ो, यू रीड इट एट होम, पीडीएफ होगा तो डोंट वरी, इसको एक बार खाली रीड कर लेना। चलो मैं ही करा देता हूं, छोड़ो, जस्ट अ रिवीजन। देखो, सबसे पहले सेक्शन 77 विद इफेक्ट फ्रॉम 2 नवंबर 2018, CHG 1 होगा या CHG 9। 9 किस में आता है? इफ चार्ज रिलेट्स टू डिबेंचर्स, तो CHG 9। देखो ये रहा, कितने दिन में? तो पहले 30 डेज में रजिस्टर कर दो, बराबर, 30 डेज में हो गया। देन बाद में ये नाटक अमेंडमेंट का, तो देखो, इन केसेस चार्ज इज रजिस्टर्ड बिफोर 2 नवंबर 2018, तो विद इन
300 days from such creation, right? And अगर on or after 2nd November है तो within 60 days of such creation on payment of additional हुआ, बराबर. एंड अगर ये ऊपर वाले दिन में नहीं किया, प्रोवाइडेड फर्दर दैट अबाउ पीरियड में नहीं किया, सेकंड टाइम एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तेरे को, ले भाई लेके जा. इन क्लॉज ए मतलब वो 300 दिन वाला, तो अगर वो 300 दिन में रजिस्टर नहीं किया तो चार्ज शैल बी विद इन 6 months फ्रॉम 2nd November 2018 एडिशनल हुआ. एंड अगर बी की बात करें तो 60 दिन में अगर नहीं किया तो दूसरी बार 60 डेज लेके जा, दूसरी बार ये देखे रहा, लेकिन फीस देख, एड वेलोरेम फीस, ओके. एंड डिले भी हो रहा है तो भी एप्लीकेशन 1 या 9 दोनों सेम फॉर्म ही रहेंगे, आइदर इट विल बी 1 और इट विल बी 9, कि क्यों डिले हुआ वगैरह जो भी रीजन है वो तुम लोग को लिखना है. क्लियर एक बार? चलो, इफ यू डोंट हैव एनी डाउट तो अभी कुछ चार्जेस के रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड सिंपल सिंपल चीजें हम लोग को देखनी है, एंड दैट इज सर्टिफिकेट. याद है स्टार्टिंग में हमने देखा था कि भाई प्रूफ तो होना चाहिए, कि दैट मींस अगर तू चार्ज रजिस्टर कर रहा है ना तो तुझे सर्टिफिकेट मिलेगा. इन विच फॉर्म? CHG2. ये कौन देगा सर्टिफिकेट? ROC देगा, ठीक है. दिस सर्टिफिकेट विल बी गिवन बाय ROC, बराबर. See the first line. Registration shall issue certificate. Sorry, registrar shall issue certificate of registration, right? In form CHG2. And अगर modify किया, modify तो भी 77 अप्लाई होगा. yes. तो तुमको रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉडिफिकेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा CHG3 में, बराबर. तो ये दो सर्टिफिकेट याद रखना, 2 and 3. फाइल कौन सा करेंगे बाय द वे? फाइल क्या किया रहेगा रजिस्ट्रेशन के लिए? विच फॉर्म वी विल फाइल? 1 नहीं, ऑलवेज से बोथ. 1 नहीं, ऑलवेज दोनों, 1 या 9, नेवर से 1, ठीक है. या तो 1 होगा या तो 9 होगा, क्योंकि ना ही मुझे पता है ना ही तुम्हें पता है कि क्या चीज का रजिस्ट्रेशन हो रहा है. वी आर जस्ट डीलिंग विद द सेक्शन. ऑलवेज से इट इज 1 और 9. हाँ, अगर क्वेश्चन में आ गया डिबेंचर तो 9 लिखना, फिर 1 मत लिखना. एंड क्वेश्चन में आया बैंक लोन तो 1 लिख देना, राइट. नाउ सेकंड, थोड़ी देर पहले याद है स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि हार्ट बीट किसका ऐसा तेज होएगा, फड़फड़ाएगा. कौन फड़फड़ाएगा बाय द वे अगर रजिस्टर नहीं हुआ तो? किसका हार्ट बीट बढ़ने वाला था अगर रजिस्टर नहीं किया तो? मैंने स्टार्टिंग में ही बोला तुम लोग को, लेंडर का ना. अभी देखो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन देखने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग एग्जांपल से समझेंगे. मुकेश भाई को फिर से उठाते हम लोग. जामनगर का रिफाइनरी, HDFC ने 1000 करोड़ का लोन दिया, रिलायंस ने किया डिफॉल्ट, चार्ज वॉज रजिस्टर्ड, चार्ज वॉज रजिस्टर्ड, रिलायंस ने किया डिफॉल्ट, HDFC क्या करेगा? रिफाइनरी में से 1000 करोड़ वसूल करेगा कि नहीं करेगा? बोलो. रिफाइनरी में से 1000 करोड़ वसूल होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा. क्या इधर HDFC का ऐसा हार्ट बीट बढ़ने वाला है, फटफट फटफट होने वाला है? नहीं होने वाला है. प्रॉब्लम कब होता है पता है? जब चार्ज रजिस्टर नहीं होता. क्यों पता है? इफ द चार्ज इज नॉट रजिस्टर्ड, जामनगर की रिफाइनरी के ऊपर HDFC आंख तक नहीं मार सकता, मतलब नजर उठा के देख भी नहीं सकता. क्यों? क्योंकि चार्ज इज नॉट रजिस्टर्ड. इसीलिए HDFC का हार्ट फटफट करेगा. क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर कल को रिलायंस ने डिफॉल्ट किया ना, ये जामनगर रिफाइनरी खाली पेपर पे ही दिखने वाला है. मैं मतलब HDFC इस रिफाइनरी को हाथ भी नहीं लगा सकता. क्यों? क्योंकि एक ही सिंपल चीज है, द चार्ज इज नॉट रजिस्टर्ड. तो ये सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस होता है. चार्ज रजिस्टर नहीं होता है ना, तो सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस है कि लेंडर प्रॉपर्टी को हाथ भी नहीं लगा सकता, अगर डिफॉल्ट भी हुआ तो भी. समझा क्या? अगर डिफॉल्ट हुआ ना तो भी लेंडर प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगा सकता. क्लियर एवरीवन? दिस इज द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस. ये समझा सब लोग को? फॉरगेट द थियरी. ये समझा ना पहला कॉन्सिक्वेंस सब लोग को? यस. सेकंड कॉन्सिक्वेंस, क्या लोन रीपे होने के पहले, चलो लेट अस से कि HDFC ने फिर से लोन दिया 1000 करोड़ का, वही रिफाइनरी, लोन रीपेमेंट पीरियड है 10 साल का, बराबर. लोन रीपेमेंट पीरियड इज 10 years. एंड 5वें साल पे क्या रिलायंस पॉसिबल है लिक्विडेट हो सकता है? मतलब ड्यू टू सम अनवांटेड सर्कमस्टांसेस रिलायंस गया लिक्विडेशन में, जा सकता है? पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? जा सकता है, राइट? जा सकता है. तो अगर रिलायंस लिक्विडेशन में गया तो HDFC
ने सॉरी रिलायंस के लिए लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ होगा, लिक्विडेटर, क्योंकि लिक्विडेशन में जा रहा है तो लिक्विडेटर अपॉइंट होगा। लिक्विडेटर सारे असेट बेचेगा रिलायंस के, लेकिन ये जो जामनगर रिफाइनरी है ना उसको अलग रखेगा लिक्विडेटर। किसके लिए अलग रखेगा? ये जामनगर वाला रिफाइनरी किसके लिए अलग रखेगा? एचडीएफसी के लिए ना, क्योंकि भाई एचडीएफसी का 1000 करोड़ उसमें लगा हुआ है, बराबर। अगर चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ ना तो लिक्विडेटर भी इसको हाथ नहीं लगा सकता। समझ में आ रहा है? दैट इज द सेकेंड कॉन्सिक्वेंस। अगर चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ है ना तो लिक्विडेटर भी कुछ नहीं कर सकता। तू भाई दूसरे असेट का जो करना है कर, जामनगर रिफाइनरी के ऊपर आंख उठा के मत देखना, एचडीएफसी के लिए। समझा? तो दिस आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन के द लिक्विडेटर और द लेंडर हैज नो इंटरेस्ट on the asset securitized. This is the biggest consequences of non registration. देखो क्लियर हुआ? दोनों एग्जांपल समझा तुम लोग को? दैट मीन्स क्या रिलायंस को पैसा रीपे करना पड़ेगा? चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ है, क्या रिलायंस को वो 1000 करोड़ अंडर एनी सर्कमस्टांसेस रीपे करना पड़ेगा? क्या रीपे तो करना ही पड़ेगा। कैसे होगा सोचो फिर, रिलायंस कैसे रीपे करेगा? देखो एचडीएफसी तो रिफाइनरी को हाथ नहीं लगा सकता, तो एचडीएफसी क्या करेगा पता है? यस, लिक्विडेटर को एसेट सिक्योर्ड का हो रहा है ना कौशल, तो तेरा बात बराबर है, उसका स्टेटस चेंज करना पड़ेगा ना। लेकिन चल, तो क्या एचडीएफसी होगा? सोच, और भी तो होंगे, है ना? क्या रिफाइनरी में से बाकी लोग का भी पैसा चुकाएंगे? एंड जस्ट इन केस लेट मी ब्रिंग यू टू सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज। याद करो मैंने सिखाया था वाटरफॉल अरेंजमेंट, याद है कुछ? याद है वाटरफॉल अरेंजमेंट? उसमें क्रेडिट देयर वाज अ सीक्वेंस। क्या पता रिफाइनरी के पहले बाकी लोग, मतलब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के पहले कुछ है, आई डोंट नो, जो भी है, अपने को क्या करने का, मतलब मुझे पता है पहले गवर्नमेंट का पैसा आता है एंड ऑल दैट, देयर इज अ सीक्वेंस। तो वो सीक्वेंस के हिसाब से पैसा जाएगा। क्या पता वो सब सीक्वेंस में सीक्वेंस का पैसा लौटाते लौटाते जब बारी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का आया तो रिफाइनरी पूरा का पूरा बिक गया। पॉसिबल है कि नहीं? ऐसा हो सकता है ना? तो अभी भी एचडीएफसी का हार्ट फड़फड़ करेगा कि नहीं? यही सोचेगा जो मैं तुम लोग को बता रहा हूं, वही सेम एचडीएफसी सोचेगा कि अरे यार चल मैं अनसिक्योर्ड हो जाऊंगा, मुझे पैसा मिल जाएगा, लेकिन क्या पता ये वाटरफॉल अरेंजमेंट के चक्कर में मेरा नंबर ही ना आए। ऐसा हार्ट फड़फड़ करेगा एचडीएफसी का। हार्ट फेल? अरे हाथ में आ जाएंगे, हार्ट फेल तो दूर की बात है। हार्ट सीधा मुंह से बाहर आएगा, योर हार्ट विल बी इन द माउथ, ऐसा इंग्लिश में बोलते ना। मेरे को इतना इंग्लिश तो आता है नहीं, बट फिर भी इसीलिए रजिस्ट्रेशन होना जरूरी। हाँ, अनसिक्योर्ड तू जो डाउट पूछ रहा है वो बराबर है, लेकिन टेंशन तो अभी भी बना है ना। इसीलिए अगर सिक्योर्ड होता, सिक्योर्ड, तो एचडीएफसी को फिक्र होता नहीं ना भाई, असेट सिक्योर्ड है, अपने को ये असेट से पैसा मिलने ही वाला है। तो जब ये रिफाइनरी बिकेगा ना, तो पहले 1000 करोड़ एचडीएफसी को देंगे एंड बाद में 4000 करोड़ वाटरफॉल में बाकी लोग को देंगे। वेलकम टू सीएस प्रोफेशनल। चलो गुड। तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, चलो लेंडर प्रॉपर्टी को हाथ लगा सकता है, फाइनल टाइम लेंडर प्रॉपर्टी को हाथ लगा सकता है नहीं, बट दैट मीन्स कि क्या बोरोवर का रीपेमेंट का राइट हट गया? क्या हट गया रीपेमेंट का? वो नहीं हटा, इट इज द ड्यूटी। कुछ भी कर, तुम लोग को पता है अगर ऐसा सीन होगा ना तो बीच में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को डाल देंगे, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सॉरी ब्रीच ऑफ परफॉर्मेंस। कॉन्ट्रैक्ट तो था, एग्रीमेंट तो था, चलो चार्ज रजिस्टर नहीं किया, 1000 करोड़ का लोन जुबानी थोड़ी देंगे, जरा सोचो। ऐसा हाँ भाई मुकेश अंबानी ले भाई 1000 करोड़ ऐसा सूटकेस में रख के दे दिया, ऐसा तो नहीं होने वाला। लोन एग्रीमेंट तो है, एग्रीमेंट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से डिस्प्यूट चलेगा,
बट क्या उधर कंपनीज एक्ट बीच में आएगा टांग अड़ाने को? नहीं. द थिंग्स विल चेंज. इसीलिए विल कंपनी, इंग्लिश में बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, विल कंपनी एस्केप इट्स लायबिलिटी even if the charge is not registered? Even if the charge is not registered, will company escape the liability? No. भाई कुछ भी हो जाए पैसा तो रीपे करना ही है. वही बोला गया है consequences of non registration में. No charge by the company shall be taken into account by the liquidator or any other creditor unless it is duly registered and certificate of registration is given by the registrar. आ गया पॉइंट? भाई तुम लोग उस प्रॉपर्टी को हाथ भी नहीं लगा सकते, चाहे तुम लिक्विडेटर हो या तुम अदर क्रेडिटर हो, बराबर, कुछ फर्क नहीं पड़ता. यू कैन नॉट टच दैट प्रॉपर्टी. लेकिन क्या रीपे करना बनता है? हाँ भाई रीपे करना तो बनता है. हाउएवर दिस डज नॉट प्रिजुडिस एनी कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्लिगेशन फॉर रीपेमेंट ऑफ मनी सिक्योर्ड बाय चार्ज. रीपे तो करना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए. यू कैन नॉट एस्केप द लायबिलिटी बाय रीपे, करना ही पड़ेगा. बराबर समझा सब लोग को कॉन्सिक्वेंसेस? यस, वेरी गुड. नाउ लास्ट इज, नॉट लास्ट बट नेक्स्ट इज सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज सेक्शन 82. व्हाट डू यू मीन बाय सेटिस्फैक्शन? जैसे कि तुम लोग तुम्हारी लाइफ के साथ सेटिस्फाइड हो, वैसे ये लोन भी सेटिस्फाई होता है. लोन सेटिस्फाई होना मतलब क्या? पूरा का पूरा पैसा रीपे कर दिया. जब पूरा का पूरा रीपेमेंट हो गया, दैट टाइम आई कैन से द लोन इज नाउ सेटिस्फाइड. तो जब लोन लिया था आरओसी को बोला था, जब लोन भर दिया तो भी आरओसी को बोलना पड़ेगा. द आंसर इज यस. ठीक है. क्लोज बोलो या वॉट एवर यू से, वेदर यू कॉल इट एज लोन क्लोज हो गया या लोन रीपे हो गया, टेन्योर वगैरह सब जो भी था, मतलब फॉरगेट टेन्योर, विद इन द टाइम पूरा का पूरा पैसा दे दिया, जो भी है, राइट. तो इन दैट केस रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन करना पड़ेगा, राइट. ऑन पेमेंट और सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज इन फुल रिलेटिंग टू द कंपनी शैल गिव इंटीमेशन टू आरओसी. कितने दिन में? 30 दिन में सेटिस्फैक्शन हो गया. कौन से फॉर्म में? CHG 4 में विथ नो ड्यूज लेटर. व्हाट डू यू मीन बाय नो ड्यूज लेटर? नो ड्यूज लेटर मतलब क्या होता है? नो ड्यूज लेटर मींस अभी 1 रुपया अभी बाकी नहीं है, राइट. क्रेडिटर हैज सेटल्ड फुल अमाउंट. नो ड्यूज लेटर का मतलब क्या होता है? पूरा का पूरा पैसा दे दिया है. ठीक है, चलो. और अगर 30 दिन में रजिस्टर नहीं किया, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा टाइम मिला है. प्रोवाइडेड दैट रजिस्ट्रार में ऑन एप्लीकेशन ऑफ द कंपनी और चार्ज होल्डर में अलाउ सेटिस्फैक्शन विद इन अ पीरियड ऑफ 300 डेज अलॉन्ग विद एडिशनल फीस, राइट. एडिशनल फीस भर के भी तुमको क्या होगा? एक्स्ट्रा व्हाट डू यू कॉल रजिस्ट्रेशन सेटिस्फैक्शन का फॉर्म तुम लोग भर सकते हो. ओके, सिंपल था. सेटिस्फैक्शन में तो कोई इश्यू आएगा नहीं. इट इज वेरी इजी. नेक्स्ट इज सेक्शन 87. कितना है? 1 मिनट, छोटा सा है. सेक्शन 87. नाउ बिफोर गोइंग टू दिस, कुछ चीजें मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन. ठीक है, तुम लोग खाली हाँ या ना सोचना. इज देयर एनी पॉसिबिलिटी के जब मैंने CHG 1 भरा कुछ डॉक्यूमेंट मिस हो गया? पॉसिबल है? मतलब अरे एक अटैचमेंट ही भूल गया मैं. हो सकता है ऐसा? हो सकता है. तो अगर एक स्टेटमेंट मिस हुआ तो क्या मैं उसको ओमिशन बोल सकता हूं? ओमिशन इंग्लिश में ओमिशन बोल सकता हूं. तो दैट इज योर फर्स्ट वर्ड इन क्लॉज ए, ओमिशन. कुछ मिस हो गया. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट केस. सेकंड, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी के जो स्टेटमेंट्स दिए थे ना उसमें एक ह्यूमन एरर हुआ, टाइपिंग एरर जा सकता है? ऐसा पॉसिबल है? टाइपिंग एरर हो सकता है. जो सपोज डॉक्यूमेंट सारे दिए मैंने बट टाइपिंग एरर हो गया, हो सकता है ना. तो क्या मैं इस टाइपिंग एरर को मिस स्टेटमेंट बोल सकता हूं इंग्लिश में? है ना. तो दैट इज योर सेकंड पॉइंट में सेकंड वर्ड मिस स्टेटमेंट. तो जब ये दो चीज होती है ना, ये चाहे ओमिशन हो या मिस स्टेटमेंट हो,
क्या रेक्टिफाई करना चाहिए, हाँ या ना? रेक्टिफाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। किसका दरवाजा खटखटाने का? सेंट्रल गवर्नमेंट का दरवाजा खटखटाने का, कि सर हमसे ऐसा ऐसा गलती हुआ है, सामने से बोलने का, भाई कुछ फ्रॉड नहीं हुआ है, गलती हुआ है, काइंडली भाई रेक्टिफाई करने का अपॉर्चुनिटी दो। तो एप्लीकेशन सीजी को करना है। ये दो सीन बोला मैंने, ओमिशन और मिस स्टेटमेंट का। थर्ड केस, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि ये जो टाइम लिमिट दिया था, ये जो एडिशनल वगैरह सब खत्म हो गया और तुमने रजिस्टर ही नहीं किया? पॉसिबिलिटी है, ये भी तो हो सकता है, राइट और रॉन्ग? तो अभी अगर एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, मतलब ये जो सेकेंड एडिशन था, सेकेंड एक्सटेंशन, वो भी अगर खत्म हो गया और उसके बाद अगर एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो भी किसका दरवाजा खटखटाने का? सीजी का। तो देर आर 3 इंस्टेंसेस जहां पे सेक्शन 87 एप्लीकेबल होगा। फर्स्ट केस ओमिशन हुआ, सेकंड केस कुछ मिस स्टेटमेंट हुआ, थर्ड केस टाइम लिमिट चाहिए एक्स्ट्रा, और जितना एक्ट में बोला है ना उससे भी ज्यादा टाइम चाहिए, तो भाई सीजी का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। ओके, क्लियर हुआ? कभी सेक्शन 87 एप्लीकेबल होगा? 3 केस में सेक्शन 87 एप्लीकेबल है, ओमिशन, मिस स्टेटमेंट, एक्स्ट्रा टाइम ओवर दी व्हाट इट इज गिवन इन द एक्ट। बराबर? तो देखो, अगर कुछ ओमिशन होता है to give intimation to registrar regarding satisfaction, तो section 87, regarding charge modification in respect to memorandum of satisfaction or any other entry made in pursuance of section 80 to 83, तो भी was accidental or some sufficient cause, or it is not in the nature prejudice the position of creditor or shareholder of the company on the application of the company or any person interested as CG deems fit and just expedient, direct that the time for giving intimation or payment of satisfaction shall be extended, आ गया पॉइंट, टाइम को एक्सटेंड किया, as the case may require, that the omissions or misstatements shall be rectified। तो ये 3 चीजें जो थी, अगर ये तीनों में से कुछ भी होता है, ओमिशन हुआ या मिस स्टेटमेंट हुआ या एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो एप्लीकेशन किसको करना है? सीजी को करना है। नाउ हियर वी डोंट हैव द फॉर्म, बट स्टिल यू कैन राइट एप्लीकेशन शुड बी मेड इन विच फॉर्म? एनीवन? सच एप्लीकेशन शुड बी मेड इन विच फॉर्म? याद है? एग्जीक्यूटिव में था, यस, CHG 8, वेरी गुड, इट इज CHG 8। नहीं, INC 28 वॉज द फॉर्म जिसके अंदर तुम लोग है ना सीजी का ऑर्डर आरओसी को सबमिट करते थे, दैट वॉज INC 28। ओके, तो देखिए यहां पे हम लोग एक एडिशनल नोट बनाएंगे, such application should be filed with, oh sorry, not ROC, CG, in form CHG 8, and order of CG must be filed with ROC in form INC 28। ROC को बताना पड़ेगा कि भाई हम लोग को सीजी ने ऑर्डर दिया है, तो तू काइंडली हम लोग का फॉर्म एक्सेप्ट कर। तो उसके पहले ना INC 28 में सीजी का ऑर्डर ROC को देंगे, देन ROC तुमको 77 के हिसाब से फिर से तुम्हें मतलब फॉर्म वगैरह सबमिट करने को अलाउ करेगा। वरना देखो, सपोज टाइम खत्म हो गया, इमेजिन टाइम खत्म हो गया है, क्या आरओसी तुम्हारा फॉर्म एक्सेप्ट करेगा? टाइम जो था ना वो खत्म हो गया है, क्या आरओसी तुम्हारा फॉर्म एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा ना, वो सीधा मना कर देगा कि भाई टाइम खत्म हो गया है। तो फिर तुम गए सीजी के पास, सीजी से परमिशन लेके आए, परमिशन आरओसी को दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाओगे? व्हाट्सएप करोगे? नहीं, INC 28 भरोगे। एंड जब INC 28 आरओसी को पहुंचेगा ना, तब आरओसी समझेगा कि हाँ, ये कंपनी का टाइम खत्म हो गया था, इस कंपनी ने एक्स्ट्रा टाइम के लिए सीजी के पास
एप्लीकेशन किया, सीजी ने एक्स्ट्रा टाइम दिया, तो अभी मैं इनका फॉर्म एक्सेप्ट करूंगा। क्लियर? सो दैट वाज इट फॉर टुडे। टाइम हो चुका है अपना, चलो, तो दैट इज इट फॉर टुडे।